लिए तो yeah, so मेरे लिए तो that was like really amazing, right? I mean, वो बोलता है कि so पहली बार मैंने ऐसा सुना था, right? Somebody is being chased so badly for by MD of the company, right, to come back, right? So it felt quite good as well. तो अभी वो यही करेगा, वो बोलेगा इससे या तो आपकी वैल्यू मालूम पड़ती है ना कि कंपनी में कितनी थी पहले. yeah, exactly right. So I mean, in the batch, right, we have all seen, right? I mean, he puts his heart and soul out, right? So, and that's like really great. In fact, all of you have been putting out. I know Rizwan has been chasing me like anything, right? He showed me the first sample of his resume, right? And I mean, we discussed, right? And we want to improve that a lot, right? So, I mean, next iteration, pe, right? I'll Rizwan after this call, right? I know I didn't get back to you, but surely that's gonna be the thing I'll do for you. Uh, Arun, how are you? How are you, man? I know you also have been having lot of updates, man. So, Yeah. uh, First of all, apologies that I couldn't complete my assignment today. no And worries, no so, worries. but yeah, I'll do it by mid of the week and submit it. Mm-hmm. And I need your help in building my resume. I mean, I just need a sample resume for APM role. Preferably, if you have any, then you can just forward it to me. हाँ, सो मैं तीनों आपको भेज दूंगा, बिफोर आफ्टर सारे वाले. मैं एक साथ सारे जितने भी मैंने आइटरेट करे हैं, राइट, अपने खुद के, राइट, यू कैन हैव अ लुक, राइट, एंड ऑब्जर्व द फाइनल स्टेट एंड द स्टेट बिफोर. सी जनरली, राइट, रिज्यूमे राइटिंग में बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? 30 सेकेंड टेस्ट करना. जैसे तुम किसी से भी रिज्यूमे शेयर करो ना, राइट, ऑलवेज से कि आपको इसको 30 सेकेंड में देख के क्या समझ आ रहा है. अगर वो 30 सेकेंड में पास है, क्योंकि जॉब अल्टीमेटली रेज्यूमे से नहीं होती, राइट? सो रेज्यूमे इज योर एंट्री पॉइंट, राइट? सो यू जस्ट वांट टू चेक आउट कि आपका जो एंट्री गेट है वो काफी सही है, राइट? मतलब ताकि आई मीन आगे बात जो है फुट फॉरवर्ड हो पाए. तो आई शेयर ऑल दी 3 कॉपीज विथ यू एंड we can individually work on it, right? Maybe in 1 or 2 iterations. That would be great. Rishi, how are things at your end? So when I will be listening good news from you? Actually, I'm applying actively. तो प्लेयर स्पॉट वाला तो इंटरव्यू, जैसे आपने बोला कि पहला इंटरव्यू तो मिस्टेक हो जाते हैं, सो आई फेल्ट दैट थिंग. एक दो क्वेश्चन में फंस गया था. एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि आपने जो राइज फ्रेमवर्क लगाया है, सो द पॉइंट विच यू हैव गिवन, आपने क्या सोच के पॉइंट्स दिया है? तो बिकॉज इट्स अ न्यू फीचर, राइट, सो इट वोंट बी डेटा ड्रिवन. तो मैंने बोला कि सी इनिशियली लाइक इट्स माय इंट्यूशन, and what I thought is like we will be conducting surveys, right? Surveys and customer interviews. So on that basis, I have given that. So, so then what he asked is like, then what if it doesn't work out? If we put on this feature और कल को डेटा आता है कि वर्कआउट नहीं होगा, then how would you tackle this? So वहां पर मैं स्टक हो गया कि अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसके लिए. So that is one thing जो So, जमा ने. Rishi, this session is for you. I think what we are covering today is uh, agile software development, right? I think I'll take that first, given काफी people have still not completed their assignment, right? And we can have that session later on, right? Okay. Maybe in last half, right? You and Siddharth can present because you guys have prepared it, right? So everybody gets So, an idea. Naivedya, I actually prepared a basic one on Power BI. Thoda, I can do it better. But also, I was asking, I had this doubt. I have a Tableau CV on Tableau that I created. And so I also had this question like, कैसे recruiters को वो दिखा सकते हैं कि क्या है, and like, it's just a simple Sure, one. sure. I'll cover this for you in this session as well, right? Maybe last half an hour, right? We will actually go through this as well, right? So maybe we can discuss that thing first, right? And uh, and then दूसरा ये था कि ऋषि can actually present, right? रिजवान हम one on one connect करेंगे, right? Hey Neil, आपका मैंने
मेरे को लग नहीं रहा था आज आप ज्वाइन कर पाओगे, बिकॉज आज आप काफी दुविधा में हो, right? But it's a good duvidha to have that people are chasing you, right? So hopefully everything turns out well tomorrow, right? And hopefully हम सब जो है legally pot smoke कर पाएंगे तुम्हारे साथ. तो so, yeah. So uh, So guys, Nivedha, I just made you a co-host right now. Oh, not a co-host, host बना दिया मैंने आपको. And you're gonna be starting up the session. आप सब कुछ control कर सकते हो, है ना? So yes, guys, thank you for joining again, and thank you Nivedha again, right? yeah. Sure. Thank you, Ritik. Right. Thank you. So Perfect, much, right? Nivedha. I'll give you the update, right, once it is done. Okay. Sure, Nivedha. Thank you so much, man. Okay. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. So guys, मैं पहले start ऐसे कर रहा हूँ just because of the fact, right, कि almost now all of you are, I mean, I can reasonably, with reasonable confidence, I can say कि in next 2 or 3 months, and some people like in 2 or 3 weeks or 2 or 3 days, right? And some people have already started working in some or the other way in product management, right? And some of you are giving interviews, some of you have already started role, and some of you, right, in next very shortly, right, जैसे भी आपका एक आध इंटरव्यू क्लियर होता है, राइट, आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ काम तो स्टार्ट कर ही दोगे, राइट? सो आई एक्चुअली वांटेड टू कवर समथिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस होती क्या है, पीएम को एक्चुअली में करना क्या पड़ता है, राइट? बिकॉज बहुत सारे आपसे, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन है ना, थोड़े इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, विच आर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी. ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है, तुमको उसके बारे में आइडिया है कि नहीं है, राइट? So this was something which I guess Neil gave insight about, right, that we should kind of start covering this, and this is also part of our sessions, right? Under agile product management, all these things come up. बहुत सिंपल है, इसको करने के बाद, राइट, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट जो है वो कितना सिंपल होता है, राइट? जो मुश्किल पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है. दिस विल बी थोड़ा सा थ्योरी, राइट, बट ये थ्योरी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, बिकॉज इंजीनियर से मतलब इंजीनियर की भी कुछ कुछ वर्ड्स हमको पता होने चाहिए, राइट? तो दिस इज व्हाट वी विल स्टार्ट विद. सीम्स कूल गाइस? Yeah. तो चलिए शुरू करते हैं. वो मैं अभी वो टेक्निकल गुरुजी देख रहा था, उससे वैसे बेटर है ना एक वो गी की रंजीत. तो एनीवेज प्रोसीड करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे. सो गाइस, what we will essentially talk about today is agile product management, right? अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था वो what और why to build था, right? कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है, किस तरीके से सोचना है कि बनाना क्या है प्रोडक्ट, राइट? दिस इज नाउ हाउ टू बिल्ड, राइट? अभी मतलब हाउ टू बिल्ड भी हमें पता होना चाहिए, राइट, कि कैसे बनेगा, राइट? इंजीनियर्स एक्चुअली में काम कैसे करेंगे. मैं तो आइडिया लाके दे दिया, मैंने चलो वो बैल्समिक पे वायर फ्रेम भी बना दिया, मैंने चलो पीआरडी भी बना दिया. अब आगे क्या होगा, राइट? इंजीनियरिंग के साथ मेरे को डे टू डे क्या इंटरेक्ट करना पड़ेगा, राइट? So there's a process called agile which is used, right? Agile क्या होता है, कोई मेरे को बता सकता है agile मतलब क्या होता है, like literal meaning of agile? Adaptable to changes. methodology है. हाँ, it's a methodology, but agile literally means flexibility. Adaptable to changes. हाँ, flexibility, adaptability, right? So agile product management actually came with a book which is a highly recommended book. I would suggest कि अब ये वाली book जो है थोड़ा सा, अगर अभी तक नहीं स्टार्ट करिए तो ये अब पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए आपको. Lean Startup करके है ये बुक. अब बहुत ज्यादा समझ आने लगेगी. तो तुम लोग एक्चुअली में लाइव एक्सरसाइज मैंने इस बैच के साथ सबसे ज्यादा किया ना, आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट अब आपको समझ आने लगेगा,
क्यों इस तरीके से ही बनाना सही होता। तो लीन रेवोल्यूशन जब आया था उसके जस्ट पहले एजाइल आया था। तो मतलब उससे पहले जो है एक अप्रोच फॉलो होती थी जिसको कहते थे वाटरफॉल अप्रोच, राइट। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट मैं जस्ट बेसिक आपको ओवरव्यू दे दूं कि स्टार्ट हुई कैसे चीजें। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट का डॉस आता था, किसी को याद है? MS डॉस आता था, ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर होता था। किसी ने देखा ये? हाँ अभी भी हाँ यूज होता है बाय द वे। मतलब डॉस में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो नॉर्मल अगर आप GUI से करोगे तो 1 घंटा लगेगा, डॉस से कर दोगे तो 1 मिनट लगेगा। जैसे कि 4 फाइलों को कंबाइन करके एक बनाना है। तो आई स्टिल यूज डॉस अ बिट जब भी मेरे को विंडोज की जरूरत होती है, और वरना मैं टर्मिनल यूज करता हूँ मैक पे जब मेरे को कुछ बहुत जल्दी करना होता है, राइट। तो ये काफी, तो पहले ऐसा टूल था, कुछ GUI नहीं होता था, कमांड बेस्ड सिस्टम होता था, राइट। इस जमाने में एक मेथोडोलॉजी चलती थी जिसको कहते थे वाटरफॉल। इसमें क्या होता था ना, बिल्कुल सब चीजें ऐसा होता था, बिल्कुल मतलब आप समझ लो बिल्कुल एकदम रिजिड तरीके से, जैसे मतलब ऑर्डर आया करना है, पहले रिक्वायरमेंट ये बिल्कुल जैसे कपड़े की फैक्ट्री होती है ना, लाइक कपड़ा आया, क्या बनाना है वो डिसाइड हुआ, फिर कपड़े की कटिंग हुई, फिर कपड़े की सिलाई हुई, राइट, फिर जब कपड़ा पैक हुआ और फिर बिका, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता था, और बिकने के बाद राइट कुछ पीसेस रिटर्न आए, कुछ पीसेस में फीडबैक आया, राइट। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का चलता था, ये बिल्कुल इंडस्ट्री स्टाइल चलता था, स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, जब याद है एक आया था विंडोज विस्टा, नाम सुना है किसी ने? Yes. हाँ, सो एक विंडोज विस्टा करके प्रोडक्ट आया था बीच में। ये विंडोज ने पहली बार स्टार्ट करी कोशिशें कि यार अब हमें थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनानी पड़ेंगी चीजें, ऐसे नहीं। इसके पहले विंडोज XP आया था, XP का एडवांस फॉर्म था विस्टा, राइट। ये ज्यादा चला नहीं था बाय द वे। तो विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 7 तो सबको पता होगा, राइट। इसमें जो है रैडिकली चीजें चेंज होने लगी, राइट। रैडिकली बहुत ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस होने लगा। तो इन्हें समझ आया यार इस ये वाटरफॉल नहीं चलेगा। वाटरफॉल में तो क्या है, रिक्वायरमेंट आई बनाना, लेकिन एक्चुअली में रिक्वायरमेंट आती ही यूजर से, राइट। तो देन दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग समथिंग कॉल्ड एजाइल व्हिच विल गिव द रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी कि लोगों का फीडबैक आए, फीडबैक पे हम इंप्रूव करेंगे, फिर नया प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इंप्रूव करेंगे, फिर उसका अगला वर्जन निकालेंगे, फिर इंप्रूव करेंगे, फिर अपना वर्जन। सो इट वाज अ साइक्लिक काइंड ऑफ नेचर दैट केम इन, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो गई पूरे सिस्टम में, राइट। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले रिक्वायरमेंट बनाई फिर 2 साल ये करो, 2 साल ऐसे 8-10 साल में सॉफ्टवेयर निकलेगा, राइट। अब हर 2 हफ्ते में अपडेट आने लगा, राइट। एंड अब तो एंड्रॉइड एंड्रॉइड जब से आया, प्ले स्टोर आया, तब से 2 दिन में अपडेट आ जाते हैं, राइट। सो दे नीडेड अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन kind of making, and parallelly lean startup was happening. Lots of startups was coming up, low cost, low volume में they would build big things. सो एजाइल जो है वो बेसिकली 3-4 चीजों पे काम करता है, राइट। सो इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शंस, राइट, ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। मतलब बेसिकली ये होता है कि इधर पे ना थोड़ा ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम होता है, जब आप लोगों पे ट्रस्ट करने लगते हो, ज्यादा इंटरेक्ट करते हो आइडियाज लाने के लिए, राइट, रादर देन एकदम प्रोसेस बना दी जैसे बैंक में होता है ना, एक ठप्पा लगा फिर उसके बाद दूसरे पे फाइल लगी फिर ठप्पा लगा, राइट। सो दे काइंड ऑफ केम अप विद मोर इंटरेक्टिव काइंड ऑफ थिंग व्हिच बिकेम वैल्यू ऑफ एजाइल, राइट, कि हमें ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना, राइट। दूसरा फोकस वाज ऑन वर्किंग सॉफ्टवेयर। We don't need to create big PRDs, 500 page PRD, right? We should create a working prototype जिसको हम prototyping करते हैं, right? So we create a working model, right? Somehow the code should be visible कि होगा क्या customer के लिए, right? So that was an important value. Third is customer collaboration. Customer collaboration बोले तो अब आप कस्टमर से ही फीडबैक लेना स्टार्ट कर दिए, कस्टमर से नेगोशिएट नहीं करते हो कि यार ये देखो ये सॉफ्टवेयर में यही है, ये सॉफ्टवेयर में यही है, राइट। यू नाउ स्टार्ट कोलैबोरेटिंग, हाउ कैन वी टुगेदर improve our product, right. Then fourth is responding to change over following a plan, right. So you kind of now see कि अभी देखो कितने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जल्दी जल्दी, राइट। सो अ लॉट ऑफ फोकस went into कि
चेंजेस आए तो हम जल्दी जल्दी अपना बिजनेस मॉडल बदल पाए, रादर देन एक प्लान को पकड़ के 20 साल कर रहे, पता चला वो पहले साल भी फेल था, 20वें साल भी फेल है, ओनली वी एंड अप लूजिंग मोर एंड मोर मनी. सो दीज वर दी 4 फाउंडेशनल पिलर्स. देखो अब इस पे आपके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इंटरव्यू में, राइट? सो उस पे ऐसे पूछेंगे, सो डू यू प्रेफर मोर प्रोसेसेस वर्सेस इंटरेक्शन? सो यार आंसर शुड बी ऑब्वियसली इंटरेक्शन होना चाहिए. डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे एजाइल क्या होता है, वो ऐसे पूछ लेंगे. तो यार एक बात बताओ, कस्टमर कोलैबोरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट और वी शुड नेगोशिएट विद आवर कस्टमर फर्स्ट. So you should then say, yeah, customer collaboration is more important, right? Because in an agile environment, right, that kind of is beneficial because हमारे product जल्दी जल्दी बन रहे हैं, right? So समझ रहे हो ना? The way of asking the question would might be different. This is in lines with हम जो गोजेक की केस स्टडी कर रहे थे, तो एक था ना वर्किंग विद इंजीनियर्स करके एक राउंड होता है, राइट? इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन राउंड बोलते हैं उसको. तो उसमें यही सब चीजें पूछी जाती हैं, राइट? सो दैट्स वन. थर्ड, अब आप देखो, मैं मतलब इन वैल्यूज के बाद, राइट, एक बार अगर आपको वो देखो, राइट, हमने अभी वाटरफॉल देखा ना कैसा गंदा सा है, राइट? इफ ऑल ऑफ यू कैन सी. कुछ क्वेश्चन है किसी के बाय द वे इससे रिलेटेड? राइट, आई मीन 4 वैल्यूज, ये मतलब इतना वैल्यू वैल्यू पे काम ही क्यों किया होगा, कोई ये पूछेगा मुझसे. मतलब if somebody has that question, like I had this question in my mind, right, कि इतना वैल्यू वैल्यू क्यों सोच के बनाते हैं. So uh, if not, right, we'll move ahead. So Please बोल दीजिए. Like you can, if you have time, discuss that thing. uh, Like can you explain that thing कि क्यों बनाते हैं? Like why should we work on these values? यार देखो क्या होता है ना ऋषिकेश, जब आप 1 साल या 2 साल के लिए सोचते हो या 6 महीने या 1 साल के लिए सोच रहे होते हो, तब तो राइट वैल्यूज वैल्यूज नहीं भी डालू चल जाता है. बट जब आप सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी सोचो, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी चेंज हो जाता है, समझ रहे हो? बिल गेट्स के बाद सत्या नडेला आया, राइट? तो अब वो ट्रांजिशन फेज हुआ, लोगों की टीम्स चेंज हुई. अगर वैल्यूज नहीं होंगी तो लोगों को सही क्या करना है उसके लिए वैल्यूज होनी चाहिए ना उनके पास. लाइक व्हाई डोंट यू गो आउट एंड किल पीपल? So इट्स अ वैल्यू इनकॉर्पोरेटेड, राइट? so when you talk about values, आप किसकी बात कर रहे हो? Like the company values or this value in terms of building a product like that? आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ. कंपनी से ही आई है एजाइल अप्रोच, राइट? सो कंपनी की भी वैल्यूज होती हैं, राइट, एंड मेथोडोलॉजी की वैल्यूज भी होती है, राइट? बट मेथोडोलॉजी की वैल्यूज डालने का पर्पस ये था कि इन द एब्सेंस ऑफ कंपनी कल्चर एज वेल, राइट, व्हाट शुड बी द राइट थिंग a software engineer and a product manager should do, right? Okay. Like for example, मैं Microsoft में काम करता हूँ, I will still align with same agile principles if I also go to Google. अगर मैं कोलैबोरेट भी कर रहा हूँ तो एजाइल के फंडामेंटल्स मुझे वही रखने, राइट? एंड दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प काइंड ऑफ ओवरऑल कम्युनिटी, राइट? कि यार अगर कम्युनिटी इस प्रेमाइस पे नहीं सोचेगी, राइट, तो एजाइल का कभी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा. इट्स लाइक जैसे आपकी जैसे मैथ्स में एग्जाम्स होते हैं ना, 1+1 2 होता है, राइट? सम फंडामेंटल्स ग्राउंड रूल्स आर लेड डाउन, राइट? दीज आर दोज ग्राउंड रूल्स कि 2 बार प्लस अगर आता है तो वो प्लस होता है, प्लस एंड माइनस पे इज इक्वल टू माइनस, राइट? माइनस एंड प्लस इज इक्वल टू माइनस. ये बेसिक रूल्स होते हैं ना. या बॉडमास रूल होता है, राइट? सबसे पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, राइट, फिर ऐड करो, फिर सबट्रैक्ट करो, राइट? सो ये सारी चीजें जो है, राइट, आई मीन दीज ले फाउंडेशन ताकि अक्रॉस कंट्री मैथमेटिक्स सेम ही तरीके से इंटरप्रेट हो, राइट? सो बाय द वे ये बॉडमास का एग्जांपल मेरा नहीं है, राइट? I actually asked this question to somebody and then he gave me the idea because I had absolutely no clue कि agile क्या होता है when I started product, right? So अब आप ये देखो, right,
मैंने ये अभी आपको दिखाया राइट, वाटरफॉल में ऐसा होता था, सबसे पहले रिक्वायरमेंट आई, फिर हमने वायरफ्रेम बना दिया, फिर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फिर वेरीफाई हुआ, फिर मेंटेनेंस हुआ। अब आजकल ऐसे नहीं काम करता, ऐसा होता है राइट, यू फर्स्ट प्लान आउट, यू फर्स्ट एनालाइज कि क्या करना है राइट। एनालाइज कैसे करते हो, सर्कल्स मेथड से करते हो आप राइट। फिर आप अपना पीआरडी बनाते हो जिसमें आपकी प्लानिंग होती है, उसके बाद आप वायर फ्रेम्स वगैरह बनाते हो, डिजाइनर के साथ बैठते हो तो ताकि डिजाइन बन जाए। डिजाइन्स के बाद है ना आप क्विकली प्रोटोटाइप बनाते हो इंजीनियर्स के साथ बैठ के, और उसको टेस्ट करते हो और डिप्लॉय कर देते हो। और वर्जन 1 निकालने के बाद फिर आप लोगों का फीडबैक लेते हो, जिसके लिए हम प्रोडक्ट मैट्रिसेस यूज करते हैं ना, कि डीएयू कैसा है, एमएयू कैसा है, उसको लिया, फिर उसको वापस पीआरडी में डाला, पीआरडी के बाद वापस डिजाइन किया, वापस डेवलप किया, फिर डिप्लॉय किया, फिर प्रोडक्ट फीडबैक आया राइट, किसी भी तरीके से फीडबैक आया, फिर प्लान किया, फिर डिजाइन किया, फिर टेस्ट किया। समझ रहे हो? यू आर नॉट रिलाइंग, यू आर रिलाइंग ओनली ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा right, not philosophy of life, right, not anything, right, you are not focusing on kind of a standard hit and trial approach, right, कि यार हमें जो है हर क्योंकि at the end of the day customer user है प्रोडक्ट का, we need to make sure कि हम हर पॉइंट पे कस्टमर से ही फीडबैक लें और उसके हिसाब से अपना रोड मैप सुधारें। सो दिस इज हाउ जनरली थिंग्स वर्क आउट। इसलिए जो भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो ये प्रोसेस को जल्दी जल्दी कर पाते हैं। ओके, कि फटाक से प्लान किया, फटाक से डिजाइन किया, डेवलप किया, डिप्लॉय किया, लोगों का फीडबैक किया, फिर प्लान किया, फिर डिजाइन किया, फिर टेस्ट किया, फिर फीडबैक किया। shall I move ahead? अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, देखो एक्चुअली में एनवायरनमेंट में होता कैसे है राइट, ये मैं आज एक्चुअली में बाय द वे नील से भी डिस्कस कर रहा था, बिकॉज नील हैज नाउ स्टार्टेड वर्किंग इन दिस स्प्रिंट काइंड ऑफ मॉडल। तो होता क्या है कंपनीज में, बेसिकली मैं अगर आपको एक एक्सेल खोल लेता हूँ दिखाता हूँ राइट, तो ऐसा होता है कि मान लो आप जो है एक आपकी कंपनी है एबीसी, ठीक है, जिसमें आप काम करते हो, जो कि व्हाट्सएप टाइप का चैटबॉट बनाती है राइट, व्हाट्सएप टाइप का मैसेंजर ऐप बनाती है, ठीक है। अब जो है इधर पे होता कैसे है डेवलपमेंट, इधर पे ऐसा होता है कि हर मंथ जो है ना, हर मंथ में कितने वीक्स होते हैं गाइस? 4 वीक्स होते हैं राइट, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, ठीक है। किसी में 5 भी होते हैं राइट, मतलब आधा आके आधा वो चला गया, बट मंथ के हिसाब से अगर चले तो 4 वीक्स होते हैं और थोड़े 1-2 दिन एक्स्ट्रा राइट। सो अब इसमें एक्चुअली में ऐसा होता है कि कोशिश करती हैं ज्यादातर कंपनीज कि इसमें 2 स्प्रिंट करा ले, स्प्रिंट ए एंड स्प्रिंट बी, ठीक है। अब स्प्रिंट ए होती क्या है राइट, स्प्रिंट का मतलब कोई मेरे को बता सकता है स्प्रिंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? भागना, भागना like होता है short distance, या शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग राइट, short distance. राइट। सो स्प्रिंट में ऐसा होता है कि बेसिकली हर स्प्रिंट की रिक्वायरमेंट्स डिसाइड होती हैं राइट, लाइक फॉर एग्जांपल स्प्रिंट ए में वी विल डू टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4, ठीक है। तो इंजीनियरिंग टीम जो है स्प्रिंट ए जब चल रही होती है ना, तो इंजीनियरिंग टीम टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 पे, टास्क 4 पे काम कर रही होती है राइट। वो प्रायोरिटी जो है, जो आपने जैसे वो राइस मॉडल बोला ना, उसी तरीके का मॉडल लगा के प्रायोरिटी डिसाइड होती है और टास्क 1, 2, 3, 4 करना स्टार्ट करती है। मीनवाइल पीएम्स क्या करते हैं? पीएम्स सिर्फ 2 चीजें करते हैं। पीएम्स क्या करते हैं,
टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इनको टेस्ट करते हैं, राइट। जैसे ही मतलब जैसे मान लो टास्क 1 है वो 4 दिन में कंप्लीट हो गया, तो 4 दिन में कंप्लीट होगा, इंजीनियर का आपको मैसेज आ जाएगा यार ये वाले टास्क को टेस्ट कर दो। आप टेस्ट करोगे और उसके बाद बोल दोगे कि टेस्ट करके इसको लाइव कर दो, राइट। टेस्टिंग एंड मेक लाइव, राइट। या आप ये बोलोगे कि यार इसको अभी टेस्ट कर लो और इसमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो तुम लोग को है ना इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज मेरे को मैं दोनों केसेस बताऊंगा, पर पहले मैं बता रहा हूँ, सपोज चारों टास्क सही थे, चारों टास्क को लाइव कर दिया। मान लो हमको चैट मैसेंजर में एक चैट का कलर चेंज करना था, ये करना था, ये ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल टास्क थे, तो ऐसे 4 टास्क थे, तो वो 4 टास्क उन्होंने कम। मीनवाइल जो है पीएम एक चीज और करता है, पीएम जो है स्प्रिंट बी की प्लानिंग करता है। पीएम हमेशा एक स्प्रिंट आगे सोचता है क्या करना है, राइट। तो स्प्रिंट बी की प्लानिंग में क्या होता है, ऑल फेल टास्क, जो मतलब अभी जो इंजीनियर्स ने दिए ना टास्क 1 2 3 4, इसमें से कुछ तो हो जाएंगे कि बिल्कुल पास हो गए, कुछ केसेस होंगे ना जिसमें उनको और काम करना है अभी वापस, राइट। तो वो स्प्रिंट बी में डालेगा सारे फेल टास्क को, राइट, प्लस ही विल ऐड न्यू टास्क, राइट। सो मान लो 1 एंड 2 फेल हो गए थे, तो 1 एंड 2 फेल हो गए और 5 एंड 6 न्यू टास्क है, राइट। तो वो ये प्लानिंग करेगा और ये वाली प्लानिंग को है ना वो इंजीनियरिंग को सबमिट करेगा। तो अब नेक्स्ट स्प्रिंट बी जब स्टार्ट होगी तो इंजीनियरिंग के पास कौन कौन से टास्क होंगे, टास्क 1, टास्क 2, राइट, टास्क 5 एंड टास्क 6, राइट। और फिर जो है पीएम फिर से रिव्यू करेगा कि राइट तुम है ना एक काम करो, तुम्हारा जो है टास्क 1 एंड 2 और 5 तो कंप्लीट हो गया है, तो टास्क 1 to 5 को टेस्टेड एंड ओके एंड मेक लाइव, ठीक है। एंड देन यू डू स्प्रिंट सी प्लानिंग which is all failed task plus add new task, right, which is 7 8 9 10 suppose ऐसा, समझे आप। पीएम एक टास्क जो है, पीएम एक स्प्रिंट पहले चलता है पीएम, क्योंकि पीएम को पीआरडी लिखनी होगी, राइट। तो पीएम पीआरडी किसकी लिखेगा, स्प्रिंट ए में थोड़ी ना लिखेगा स्प्रिंट ए की, वो तो पहले ही दे दी उसने, राइट। ये 4 टास्क की तो पहले ही पीआरडी दे चुका है। वो जो है पीआरडी बनाएगा नए वाले टास्क की, बोले तो 5 एंड 6 की, और 1 एंड 2 के इंप्रूवमेंट्स जो है वो सजेस्ट करेगा। सो पीएम जो है एक स्प्रिंट आगे काम करता है, इस स्प्रिंट का नहीं करता है, वो अगली स्प्रिंट का करता है, क्योंकि उसको अगली स्प्रिंट में देना होता है इंजीनियर्स को टास्क। क्लियर हुआ कुछ? हाँ या इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती कहाँ पे है? कॉम्प्लेक्सिटी आती है सिर्फ इंजीनियरिंग के टास्क नहीं होते, डिजाइनर्स के भी टास्क होते हैं। क्योंकि आप डिजाइनर को भी तो कुछ कुछ दोगे ना वायर फ्रेम बना के, और बोलोगे कि तू तेरे को इसका एक मेरे को डिजाइन बना के दे दे, वायर फ्रेम मैंने दे दिया और एक टास्क बी के तू वायर फ्रेम बना के दे दे। तो डिजाइन की एक अलग स्प्रिंट चलती है, इंजीनियरिंग की अलग स्प्रिंट चलती है। इंजीनियरिंग में भी मल्टीपल टीम की मल्टीपल स्प्रिंट चलती है। तो पीएम नीड्स टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ ऑल दी स्प्रिंट्स दैट आर हैपनिंग। बस उसका काम ये होता है कि एक स्प्रिंट पहले का काम कर रहा हो, मतलब एक स्प्रिंट बाद का काम कर रहा होता है। लाइक अभी तो जैसे मैं अपना पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ। पेटीएम में एक मंथ में एक ही स्प्रिंट होती है, क्योंकि पेटीएम काफी बड़ी है, राइट। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक ही स्प्रिंट करनी होती। तो मैं अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई, राइट। तो मैं जून स्प्रिंट की प्लानिंग कर रहा हूँ कि जून में क्या क्या करना है, ठीक है। फिर मैं जून आएगा तो जून में जो जून के टास्क हो गए उनको टेस्ट करूंगा और जुलाई की प्लानिंग करूंगा, ठीक है। सिंपल है ना। कोलैबोरेट कैसा करते हैं भाई इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स? कोलैबोरेट
यार कोलैबोरेट तो कॉल करके करते हो। नो वैसे नहीं। अभी अभी टास्क 1 के लिए उसके लिए वायर फ्रेमिंग चाहिए, उसका डिजाइन चाहिए। एट द सेम टाइम डिजाइनर भी कैसा काम करेगा, इंजीनियर कैसा काम करेगा। वो अभी मैं जस्ट अभी आपको है ना, दिस इज समथिंग वी विल कवर, राइट, कि एक्चुअली में टास्क बनते कैसे हैं, राइट। हाँ बट अभी बस ये आपको समझ आ गया ना, आप एक स्टेप अहेड चलते हो, हाँ राइट। अभी जस्ट मैं उसको दिखाऊंगा कि वो होता कैसे। देखो, तो अब एग्जैक्टली जो रिजवान का क्वेश्चन था वही अभी, रिजवान आपका क्वेश्चन ऐसे आंसर होगा कि बेसिकली होता क्या है। आप जो है बेसिकली जीरा करके सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में आप जो है सारे टास्क को बेसिकली डाल देते हो, राइट। तो जीरा में होता कैसे है मैं आपको वो एग्जैक्ट जीरा भी दिखाऊंगा, पर होता क्या है, प्रोडक्ट जो है ऐसे करता है। लाइक फॉर एग्जांपल रिजवान, राइट, यू आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर, राइट। मान लो आपको एक चीज बनानी है कि वी शुड हैव फोन कॉल बटन ऑन आर मैसेंजर ऐप। मान लो आपके में कॉलिंग फैसिलिटी अभी तक है नहीं, या वो है और हमें बस सामने दिखानी है, राइट। तो अब जो है आप क्या करोगे रिजवान, सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे एक एपिक में। एपिक कोई मेरे को बता सकता है, कोई एपिक का एग्जांपल देगा मेरे को? नो आइडिया। अरे महाभारत यार। ओके ओके, मुझे लगा कोई कुछ फ्रेमवर्क है। हाँ नहीं नहीं, वो मैं दिखा रहा ओ, ओके ओके, हाँ, मैं देन रामायण महाभारत लग गए। हाँ 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 हाँ, ओके ठीक है। ओके। तो राइट, सो अभी देखो महाभारत कैसे लिखी हुई है। महाभारत एक महाभारता करके एक किताब है, ठीक है। इंग्लिश में ए लगा होता है पीछे, हिंदी में महाभारत लिखा होता है, राइट। सो महाभारत इज वन ऑफ द बुक्स, राइट, इट्स कॉल्ड एपिक, ठीक है। अब एपिक के अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती है, जिसको हम मूवी जैसे हम चैप्टर्स नहीं होते, एक बुक को भी देखा होगा ना आपने, नॉवेल पढ़ी होगी सबने, तो एक बुक होती है, बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, राइट। हाँ राइट, हर चैप्टर अपने आप में एक छोटी स्टोरी होती है, जिन सारी स्टोरीज को स्टिच करके एक बुक बनती है, राइट। ये तो सबने देखा हुआ है ना, मतलब किसी ने नहीं पढ़ी हो कोई भी स्टोरी बुक तो मेरे को बता दो, मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ अब भी। लाइक मेरी फेवरेट बुक सीरीज में बता दे रहा हूँ, एक मेरी हैरी पॉटर है, ठीक है। तो अब देखो हैरी पॉटर जो है, राइट, हैरी पॉटर के 7 पार्ट्स हैं, राइट। तो या एक ही बुक ले लेते हैं कोई, किसी को अगर पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो ये वाली बुक जरूर पढ़ना कभी, डिसेप्शन पॉइंट बाय डैन ब्राउन। किसी ने पढ़ी है? अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी बुक थी। तो देखो कोई भी बुक को अगर आप देखते हो, राइट, तो बुक के अंदर होता क्या है, बुक के अंदर पहले पेज को जब आप खोलते हो तो बुक के कंटेंट्स आते हैं, राइट। यार बोलते हो यार, हाँ। थोड़ा एंथू बना रहता है उससे। सो कंटेंट, अरे ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट लिखे होते हैं, ये सारी कोई भी बुक होती है, कोर्स की भी बुक उठाते हो ऐसे ही लिखा रहता है ना, चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, राइट, चैप्टर 3 ये है, चैप्टर 4 ये है, चैप्टर 5 ये है, राइट। सो ये सिमिलरली ये जो चैप्टर्स हैं वो आपकी स्टोरीज होते हैं, राइट। सो सब, और ये सारी स्टोरीज मिलके एक एपिक बनाते हैं, राइट। एपिक मतलब एक आप समझ लो एपिक और स्लैश बुक, राइट। एपिक इज द स्टैंडर्ड टर्म व्हिच इज यूज्ड इन एजाइल, राइट। एपिक के अंदर स्टोरीज बनाते हो आप, स्टोरीज के अंदर फिर टास्क बनाते हो, राइट। तो जैसे मान लो आपने जो पीआरडी लिखा है ना, हाँ वो पीआरडी जो है उसका एक एपिक बना हो गया। पीआरडी इज वर्जन 1 ऑफ माय प्रोडक्ट, ठीक है।
या मान लो हमको, जैसे मैंने बोला कॉलिंग फीचर बनाना है, राइट? तो आप कॉलिंग फीचर का एक पीआरडी बनाओगे, राइट? ठीक है, तो सिमिलरली आप एक एपिक बना दोगे कॉलिंग फीचर का, कॉलिंग कॉलिंग का एपिक। इसके अंदर कॉलिंग की सारी स्टोरीज होंगी। तो एक स्टोरी, अब देखो स्टोरीज कैसे होती है। स्टोरीज हो गई कि एज अ यूजर, राइट, आई शुड बी एबल टू कॉल पीपल, राइट? अब कॉलिंग करने के लिए क्या क्या टास्क करने होंगे? कॉलिंग के लिए एक तो ये है कि हमको, राइट, सबसे पहले तो हमको वायर फ्रेम चाहिए होंगे, राइट? हाउ डज मतलब हाउ डज कॉलिंग बटन लुक लाइक, राइट? तो आपको एक वायर फ्रेमिंग का आप टास्क बनाओगे, राइट, कि हमें वायर फ्रेम बनाना है, राइट? ये किसको करना है? ये पीएम को करना है, राइट? टास्क 2 हमें फिर ये करना है कि वी नीड फोटोशॉप लेवल की डिजाइन्स, मतलब बिल्कुल जो ऐप बिल्कुल रियलिस्टिक सा लगे, डिजाइनर वाला, राइट? तो वी नीड डिजाइन्स फॉर इट, राइट? ये किसको करना है? डिजाइनर को करना है, राइट? फिर उसके बाद जो है वी नीड बैक एंड कोड टू बी रिटन, राइट? बेसिकली किसी को कोडिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, राइट, विच इंजीनियर विल डू, राइट? एंड देन टेस्टिंग करनी होगी इसके लिए, राइट, टेस्टिंग विच क्यूए विल डू। देन इसके बाद एक होता है वर्ड यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब बेसिकली आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट सही चल रहा है कि नहीं, राइट? तो इसका एक टास्क बनाओगे आप जिसको पीएम को करना है, राइट? अब देखो वायर फ्रेमिंग वाला टास्क जो है वो मैं अगली स्प्रिंट में कर लूंगा, तो स्प्रिंट बी में हो गया। डिजाइनर से भी मेरी बात हुई है, तो ये वाला टास्क मैंने डाला है और वो बोल रहा है वो स्प्रिंट बी में उठा रहा है, राइट? कोडिंग जो है ऑब्वियसली अगली स्प्रिंट लग जाएगी बिकॉज वो अभी और किसी चीज में कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंट सी में होगा। हो सकता है टेस्टिंग सेम स्प्रिंट में चले आए तो स्प्रिंट C/D में होगा, राइट? एंड देन मैं जो है स्प्रिंट डी में इसकी टेस्टिंग करूंगा। स्कोपिंग पीरियड नहीं आता है क्या इसमें? जो हाँ? ग्रूमिंग और स्कोपिंग इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं? यार वो स्कोपिंग वगैरह आपका काम है, मैं ओके। अभी काम बांटने की बात कर रहा हूँ। आपके तो काम बहुत सारे हैं ही, लाइक वायर फ्रेम तो आप तभी डालोगे जब आप स्कोपिंग डिसाइड कर रहे होगे, मतलब इस स्कोप में क्या है, राइट? वो जो है आप तो अपनी सारी मतलब वो तो इंजीनियर्स जो है अपने खुद के टास्क बनाएंगे ना। एक बैकएंड कोडिंग में मैंने सिर्फ एक बना दिया, राइट? हो सकता है इस टास्क के भी सॉर्ट सब टास्क हो, राइट? लाइक बैकएंड कोडिंग तो मैंने बस लिख दिया है, राइट, वी शुड बी एबल टू कॉल कस्टमर, राइट, बट इंजीनियर्स इसके अंदर के सब टास्क बनाएंगे। हो सकता है इंजीनियर्स बोले कि हम आधे टास्क स्प्रिंट सी में उठाएंगे, आधे टास्क स्प्रिंट डी में उठाएंगे, बैकएंड कोडिंग से रिलेटेड जितने भी हमारा टास्क है उसके हमने 10 सब टास्क बना लिया, ठीक है? तो 5 अभी करेंगे, 5 बाद में करेंगे। लाइक क्लियर हुआ आपको? या नील आप पूछो एक, मतलब मेरे को लग नहीं रहा, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी आप सबको क्लियर हुआ है। नहीं, वही दिस इज आफ्टर द रिक्वायरमेंट इज क्लियर फ्रॉम द बीए टीम ना कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप ये लोगे। हाँ हाँ, वो मैं तभी तो उसको भी कंसिडर करा था, सॉरी, वो आई गॉट कंफ्यूज। हाँ हाँ, तभी तभी मैंने बोला ना, अभी वो वॉट और वाई तो आप पीआरडी में डाल ही चुके हो, हाँ। ये पीआरडी बनने के बाद करना है। ओके। पीआरडी बनने के बाद जो है आप उस पीआरडी को कॉलिंग फीचर करके एक एपिक बनाओगे जीरा में और उसमें अपनी पीआरडी डाल दोगे जो कि सब कोई पढ़ पाए, ठीक है? ओके। कि पूरी इस कथा में, राम कहानी में होगा क्या क्या, राइट? whatever will happen in this entire story, right, entire big epic you will tell। और फिर एपिक के अंदर अलग अलग स्टोरीज आएंगी कि एक है कॉलिंग करना, एक है फोटो कैमरा देना, एक है ये, राइट? सो कैमरा फीचर्स का ये आप स्टोरी बना दोगे, उसमें जो भी कैमरा से रिलेटेड चीजें हैं वो उसमें डालते होगे, राइट? फिर एक स्टोरी आप बना दोगे इससे, तो मतलब समझ गए ना, वो सारी स्टोरी स्टिच होके एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को मतलब, और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन के आपकी ऑफरिंग बनेंगे। तो जो आप जो प्रोडक्ट ओन कर रहे हो उसका आप एक एपिक बनाते हो, समझे? या ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इंजीनियर्स ऑलरेडी एपिक बना लेते हैं,
राइट, अपने हिसाब से आपका काम होता है सिर्फ स्टोरीज डालना और स्टोरीज के अंदर टास्क डालना। ऑलरेडी उन्होंने कॉलिंग फीचर का एपिक बनाया होगा, राइट, आपको सिर्फ उसके अंदर स्टोरीज डालनी है और अपने टास्क डालने और टास्क के सब टास्क बनाने। लाइक टास्क के सब टास्क बोले तो मान लो एक टास्क है आपका कि वी शुड क्रिएट अ टैब्लू डैशबोर्ड फॉर पीपल, राइट। अब उस टैब्लू डैशबोर्ड के दो तीन चीजें हो गई, राइट। एक जन जो है वो सीक्वल की क्वेरीज लिखेगा आपके लिए या एक्सेल बना के देगा, फिर एक जन जो है वो टैब्लू के डैशबोर्ड में सब चीजें अरेंज करेगा, राइट। तो दो टास्क हो गए, राइट। तो वो दोनों टास्क जो है वो दोनों जो है वो उसके सब टास्क हो गए, राइट। टास्क हो गया टैब्लू रिपोर्ट, बस सब टास्क हो गए क्रिएशन ऑफ सीक्वल क्वेरीज या क्रिएशन ऑफ एक्सेल। सेकेंड टास्क हो गया क्रिएशन ऑफ टैब्लू डैशबोर्ड। तो बेसिकली ये होता है इन जनरल। इस पे किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है? जब ये टास्क क्रिएट करते हैं स्प्रिंट, कौन से स्प्रिंट में कौन सा टास्क करना चाहिए, PM will integrate with designer and engineer to build this task, right? हाँ, अब देखो क्या होता है, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ होता कैसे, राइट। देखो मेरे से है ना क्या, सो मान लो ये बोलेंगे कि यार हमारी स्प्रिंट ए जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब स्प्रिंट बी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। स्प्रिंट बी विल स्टार्ट टुमारो, ठीक है। तो तो आपको जो है ना इंजीनियरिंग टीम पहले ही बता देगी 2-3 दिन पहले कि यार देखो ये स्प्रिंट, हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग करने वाले हैं, स्प्रिंट बी की प्लानिंग करने वाले हैं, तुम आ जाना अपने टास्क लेके, ठीक है। वो ऐसा बोलेंगे आपको, ठीक है। तो आप जो है, और वो 2-3 दिन पहले बताया आपको, राइट। तो यस्टरडे में सब कुछ वो हो गया, राइट। तो कल तक बेसिकली मेरे को क्या क्या कर लेना चाहिए था, या ऐसे ले लेते हैं कि मान लो अपनी 25th को जो है, 25th मई को स्प्रिंट है, तो स्प्रिंट प्लानिंग होनी है जिसमें जो है टास्क प्रायोरिटाइज होंगे इंजीनियरिंग के साइड से कि हमको क्या क्या करके देना है, राइट। तो आपको अभी तक क्या क्या करके रखना होता है। तो 24th में हो गया एंड दिस इज टुडे, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप जो है आ, आप एक अपनी एक्सेल शीट तो बना के रखोगे ही, राइट, कि कौन कौन से टास्क करने हैं और क्या करने हैं, राइट, ठीक है। या जीरा बोर्ड पे जैसे भी आपने रखा हुआ है, राइट। तो आप अपने टास्क नोट डाउन कर लोगे, टास्क 1 जो है, टास्क 2 जो है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, टास्क 4 है, ये चारों टास्क हमारे होने हैं, ठीक है, जो हमको इंजीनियरिंग से कराने हैं, ठीक है। 24th मई को दो चीजें होंगी। 24th मई को आपसे फाइनल लिस्ट मांगी जाएगी ऑफ योर टास्क। तो आप जो है ये चारों टास्क का और इस चारों टास्क से रिलेटेड जीरा आईडी जो है वो इनको सबमिट कर दो। जीरा आईडी बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कोई ऐप की रिक्वेस्ट भेजते हो तो एक आपको ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस आईडी मिल जाता है ना, वैसे ही जीरा में एक आईडी मिल जाता है। आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो वो उस आईडी से ट्रैक हो पाता है सब कुछ। मैं अभी दिखाऊंगा जीरा काम कैसे करता है, राइट। पर आपसे फाइनल लिस्ट ऑफ टास्क मांगी जाएगी। दूसरा कहते हैं, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो स्प्रिंट। और तीसरा जो है, मतलब रेट्रो स्प्रिंट होगी और इसके बाद होगा एक प्री ग्रूमिंग सेशन। तो बेसिकली होगा क्या, ये फाइनल लिस्ट ऑफ टास्क में तो आप ये 4 टास्क दे दोगे, राइट। अब तन ने तो ये 4 टास्क देने हैं स्प्रिंट बी में, अपन ने डिसाइड कर लिया कि यार ये वाले 4 काम होने हैं इस स्प्रिंट में, ठीक है। based on all the discussions we had, based on making sure कि PRD है उनका, making sure कि हमारे पास सारी चीजें हैं रिक्वायर्ड, राइट। डिजाइनर्स को अगर इंजीनियर्स को डिजाइन चाहिए है तो वी आर श्योर कि अभी तक हमको डिजाइन मिल गई है, राइट। तो अब आप जब इंजीनियर्स के साथ करोगे तो एक आपसे फाइनल लिस्ट मांगी जाएगी, तो आपने लिस्ट अपनी सबमिट कर दी, राइट। नेक्स्ट थिंग विल हैपन इज कि जो अभी पुरानी स्प्रिंट जो क्लोज हुई है, मतलब बोले तो स्प्रिंट ए जो हुई है, उसका एक डिस्कशन होगा कि इसमें व्हाट वेंट गुड, व्हाट वेंट बैड। तो इसमें बेसिकली आपसे भी इनपुट लिया जाएंगे कि यार कैसे हम स्प्रिंट को और कर सकते हैं,
यार पिछली बार हमने बोले तो 4 टास्क करने को थे लेकिन हुए सिर्फ 2 टास्क, राइट? तो हम क्या करें कि अब इस बार मैं अगर 4 दे रहा हूँ तो 4 के 4 ही हो जाएं, राइट? और तुम्हारे पुराने भी 2 बचे हुए हैं, तो टोटल तुम लोग के पास 6 टास्क हो गए। कैसे करें? क्या कोई टास्क को हमें टास्क कम रखने चाहिए या टास्क और बढ़ा देने चाहिए क्योंकि 4 और नए इंजीनियर्स आ गए, राइट? ऑल दोस डिस्कशंस विल हैपन इन दिस रेट्रो स्प्रिंट सेशन। उसके बाद एक होगा प्री ग्रूमिंग सेशन। इसमें क्या होगा ना, इसमें जो आपके टास्क है ना जो आपने डाले हुए हैं स्प्रिंट में, मतलब बोले तो 3 टास्क 1 2 3 एंड 4, इन सारों से रिलेटेड जो मेन इंजीनियर्स जो काम करने वाले होंगे ना, वो आपसे बोलेंगे कि यार हमको थोड़ा सा टास्क का आइडिया दे दो कि ये टास्क जो है कितना मुश्किल है। दे विल वांट टू एनालाइज कि ये टास्क जो है कितने मुश्किल होंगे, राइट? सो दैट दे हैव अ रफ आइडिया। और 25 मई को जब स्प्रिंट प्लानिंग हुई ना, इसमें होगा फुल ब्लोन ग्रूमिंग सेशन। इसमें जो है हर एक टास्क को डिटेल में डिस्कस करा जाएगा, नॉट ओनली विद इंजीनियर बट आल्सो विद हिज इंजीनियरिंग मैनेजर। मतलब बोले तो इंजीनियर्स का भी होता है ना, टेक लीड होता है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, राइट? वो सब डिस्कस करेंगे ताकि और कोई पीएम ने कोई और प्रायोरिटी टास्क तो नहीं दिया हो जिसकी वजह से कोई टास्क ड्रॉप होना हो या ऐसा कुछ होना। ग्रूमिंग सेशन के क्लोज होते ही 26 को होगा स्प्रिंट फाइनल। इसमें जो है फाइनल लिस्ट ऑफ योर टास्क टेकन आ जाएगी इंजीनियरिंग से। इंजीनियर्स आपको बता देंगे तुमने 4 टास्क सबमिट किए थे, चारों के 4 पिकअप हो रहे हैं कि सिर्फ 2 ही पिकअप हो। समझ रहे हो आप? मतलब बेसिकली इधर पे उल्टा होगा, आपने पहले लिस्ट दी थी, इन लोग प्लानिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे और 26 को आपको बता देंगे इनमें से हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, राइट? अब तुम्हें अगर लड़ना है तो जाके सीईओ से लड़ा, राइट? बहुत केसेस में लाइक 99% केसेस में लड़ना भी पड़ता है कि हमारा टास्क करवा दो, हमारा टास्क करवा दो, राइट? बट इट इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी, इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर, कितने कस्टमर का फीडबैक हो सकता है कि 2 और प्रोडक्ट मैनेजर्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हो जो आपके टास्क से होना पहले जरूरी हो, राइट? सो योर अदर टास्क माइट बी एक्सेप्टेड और माइट बी ड्रॉप, बट ये आपको एक फाइनल लिस्ट आपको सबमिट कर देंगे और इवनिंग तक एकदम जो है फाइनल मेल चले जाएगा टू ऑल कि दीज आर दी टास्क। ये आपको जनरली मॉर्निंग में आ जाएगी फाइनल लिस्ट ऑफ टास्क टेकिंग। और इसके बाद अगर आप कुछ लड़ सकते हो तो लड़ लो इस दिन में, अगर इस दिन आप बीमार थे, छुट्टी पे थे, कोविड हो गया था, तो फाइनल लिस्ट चली आएगी, ठीक है? तो ऐसा रहता है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? No. कि कैसे प्लानिंग होती है, किस तरीके से वो होता है, किस तरीके से क्या क्या, कौन, हमने 4 दिए लेकिन सिर्फ गए 2 ही, तो मतलब सी ऑल दीज थिंग्स यू विल इवेंचुअली रियलाइज कि मतलब तुम्हें फिर आइडिया लगने लगेगा कि इंजीनियर्स को मैं इतने दूंगा तो इतने ही करके देंगे। लाइक ऐसा तो होगा नहीं ना कि तुमने 100 बोल दिया तो 100 हो जाए, क्योंकि तुम्हारे को कोई रिपोर्टिंग तो है नहीं। तो वो तो इंजीनियर्स की स्वेच्छा, उनकी बैंडविड्थ, उन सब पे डिपेंड करता है। Um, so Naivedya, I mean this period of planning, जहाँ पे 24 to 26 जो कर रहे हैं, like does this vary or does this depend? Because again you're grooming it, again grooming sessions भी ज़्यादा हो सकते हैं to understand maybe available engineer जो वो particular task कर सकता है वो available नहीं है, या तो फिर जो फाइनल लिस्ट निकालेंगे ना उसमें वो 2 चीजें डाल देंगे, टास्क 3 इज टेंटेटिव, ग्रूमिंग पेंडिंग, ऐसे लिख के। नहीं हो पाई थी ग्रूमिंग बिकॉज इंजीनियर वाज अनअवेलेबल, तो आप फिर 26 को डिस्कस कर लो या 27 को डिस्कस कर लो, जो भी हो। और ग्रूमिंग, अगर किसी कंपनी में ग्रूमिंग नहीं होती है, मतलब इनफैक्ट आपसे भी कोई पूछा जाए कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज कि आप एजाइल फॉलो करते हो क्या, तो आप ग्रूमिंग वगैरह करते हो सेशंस की, नहीं करते? तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ग्रूमिंग नहीं होती है इसका मतलब जो है कंपनी एकदम कंडम है, means the company is not following any approach. Engineers will not have a heck of idea.
what to build, and ultimately a crappy product will be built, right? So grooming समझ गए ना, डॉग ग्रूमिंग होती है, जैसे देखा होगा ग्रूमिंग क्या होता है, ग्रूमिंग डॉग। ये बढ़िया है। तो इसी तरीके से हर टास्क को उठा के ना सबको ही आ जाते हैं। सो ये वाली कॉल पे सब होते हैं ग्रूमिंग सेशन में। टिपिकली सीटीओ होता है, टिपिकली वीपी ऑफ प्रोडक्ट होता है, टिपिकली इंजीनियरिंग मैनेजर्स होते हैं, टिपिकली पीएम्स होते हैं, और डेवलपर्स जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो होते हैं। तो इसमें सबका होता है, लाइक एंड प्रोडक्ट हेड तो होता ही होता है सीपीओ। बिजनेस एनालिस्ट। हाँ, ये भी होता है। ये सारे लोग होते हैं, बीए हो गया, एपीएम हो गया, राइट। ये सारे लोग जो है टिपिकली ग्रूमिंग सेशन में होते हैं, और ये टिपिकली 2 से 3 घंटे चलता है, क्योंकि इतने सारे पीएम्स है ना, लाइक 10 पीएम है, 10 पीएम के 5-5 टास्क, 50 टास्क होते हैं, 50 टास्क डिस्कस करने के लिए 2-3 घंटे तो चाहिए। कई बार 6-6 घंटे भी चलता है। एक बार हुआ था जब मेरा 12 घंटे चला था लगातार पे आईडी पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको कुछ करना था, और बहुत ज़्यादा टास्क हो गए थे और हमें कंप्लीट करने थे। बट ये जनरली लंबा होता है ये सेशन, और मतलब सबसे काम का यही सेशन होता है। और इसी पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन से नहीं आओगे तो यहाँ पे यू विल बी डूम्ड। यहाँ पे आपकी स्टोरीज खोल के देखी जाएंगी, यहाँ पे देखा जाएगा कि आपने पीआरडी कितना अच्छा लिखा है, कितना खराब लिखा है। मतलब बेसिकली दिस इज योर टाइम टू शाइन और सक। तो जनरली प्री ग्रूमिंग सेशंस में इंजीनियर से पूछ लेना चाहिए कि यार मैंने जो टास्क बनाया है तेरे को सही लग रही है स्टोरी, इसमें और कुछ डालूं क्या, तेरे को समझ आ जाएगा, तू कर पाएगा इसको करके। अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप समझ लो आपसे स्टोरी नहीं लिखते आपकी, और फिर रात को बैठ के आप काम करना, क्योंकि कल तो ग्रूमिंग सेशन, उसमें सीटीओ से भी डांट खाओगे, सीटीओ से भी खाओगे, पीएम तो डांटेगा ही। पीयर पीएम्स बोलेंगे कि ये फालतू है, नल्ला है। और एपीएम और बीए ऑब्वियसली वो उनका उस समय तक कुछ ओपिनियन होगा नहीं। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगली बार से आपके टास्क को और नहीं उठाएगा। मेरा कल फर्स्ट है प्री ग्रूमिंग सेशन। हाँ, तो उस पे अटेंड करना, और उस पे मतलब लिटरली आस्क इंजीनियर्स लाइक 2-3 बार कि मतलब सब क्लियर है ना, अगर आपको कुछ भी पूछना। एंड इधर पे राइट जो क्वालिटीज काम करती है ना, वो आपकी होती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग कि पीएम इज नॉट रूलर, राइट, बट जस्ट अ फैसिलिटेटर। ठीक है, आपको है ना हर चीज पे राइट, यू नीड टू काइंड ऑफ रिक्वेस्ट पीपल लाइक 100 टाइम्स, यार ये इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, एंड यू नीड टू कीप अ वेरी काम एंड कंपोज्ड अप्रोच। ये मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राइट इनका तो है ही, बट आप सब भी जैसे ही स्टार्ट करोगे राइट, आप भी ग्रूमिंग सेशन अटेंड करोगे, और जनरली ग्रूमिंग सेशन स्क्रू अप करना, मतलब 2-3 ग्रूमिंग सेशन आपने स्क्रू अप करे और चौथे में तो आपकी नौकरी पे ही सवाल आ जाएगा। तो एंड इंजीनियर्स का फीडबैक सबसे ज्यादा मैटर करता है। मतलब इंजीनियर्स को अगर आप बेकार लग रहे हो तो फिर वो मतलब बोल ही देंगे ना, हमें नहीं चाहिए भी है, तो हम इसके टास्क नहीं उठाएंगे। तो ये दूसरा, आस्क 2-3 टाइम्स वेरी कामली, राइट, एंड ऑलवेज से टू इंजीनियर्स दिस इज अ सिंपल टास्क इफ वी डू इन स्टेप्स। मतलब आपकी स्टोरीज से रिफ्लेक्ट भी यही होना चाहिए कि बहुत इजी है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो वो जो है टास्क को भी नहीं पिकअप करेंगे, वो बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल टास्क है, ये तो बाद में उठाएंगे, राइट। सो अगर आपको प्रायोरिटाइज करवाना है तो सिंपल टिप है कि राइट, अब बोलो कि यार ये बड़ा सिंपल टास्क है, मैंने इसी टास्क को जो है ना 4-5 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो पार्ट बाय पार्ट कर लेना। अगर सारे नहीं कर पा रहे हो तो 3 अभी कर लो या 2 अभी कर लो और 3 बाद में कर लेना, राइट। एंड यू ऑलवेज हैव टू बी इन आस्किंग मोड, मतलब आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग मोड, राइट, कि यार ये आप करवा दो। बिकॉज इंजीनियर को डांटना आपका काम नहीं है, इंजीनियर को डांटना है इंजीनियरिंग मैनेजर और वीपी ऑफ टेक्नोलॉजी और सीटीओ का काम है।
आपका काम नहीं है वो चीज करना, मतलब आपका सिर्फ ये काम है मेरे टास्क हो नहीं रहे हैं, उसके आगे आपका से कुछ नहीं, राइट? नेवर, जब आप बोलते हो कि हमें कोई भी मतलब स्टेप्स को टास्क में मतलब डिवाइड करने होते हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल एक नया फीचर करना है, लॉन्च करना है, तो उसमें मतलब आप अभी इंजीनियरिंग टीम को कैसे बोलोगे कि इसके पांच पांच टास्क है, तो लाइक बेसिकली आप स्टोरी कैसे बताओगे कि इस फीचर के लिए आप उसको फर्दर पांच टास्क में कैसे करोगे डिवाइड? So like as a PM, we should know all the technical technicalities कि ये API यूज होगा, फलाना, मतलब वो सब मैं मेरे को जानना एग्जांपल है। ले ले रहा हूँ। मैं कोई मेरे को एक वो शेयर करेगा जिसमें वो आप लोगों ने किया है, जो आप लोग ने असाइनमेंट किया था, कोई भी एक शेयर करेगा लिंक व्हाट्सएप पे ही। कौन सा वाला? अरे वो आप लोगों ने असाइनमेंट किया था ना जिसमें हमने क्या कहते हैं वो व्हाट्सएप वाला किया था असाइनमेंट। चलो यही खोल लेते हैं, ठीक है? तो मान लो आर आइडियाज यही इवेंट वाला हमको फीचर बनाना है, ठीक है? ये तो सबको पता है, राइट? इवेंट वाला फीचर। तो आप क्या बताओगे उनको ये वायर फ्रेम्स खोल के, राइट? इसी फर्स्ट थिंग दैट हमको बेसिकली करना क्या है कि व्हाट्सएप पे आपको जाके, राइट, यू एसेंशली नीड टू अलाउ यूजर्स कि जब भी अगर ग्रुप है तो वो बेसिकली एक ऐसा कैलेंडर करके आइकॉन हो जाए, और वो जब इस कैलेंडर करके आइकॉन पे क्लिक करेगा तो वो इवेंट नेम, टाइम, डेट ये सब सेट कर पाएगा, और उसके बाद वो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट हो जाए। तो मैंने इसके 4 टास्क बनाए हैं। पहला टास्क तो ये बनाया है कि यूजर जो है जब ग्रुप पे क्लिक करे तो बेसिकली वहां पे ये आइकॉन आ जाए। दूसरा मैंने बनाया है कि बेसिकली आइकॉन क्लिक होने पे ये चीजें हमें इनपुट लेना है, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट को सबमिट करा जाए। सबमिट होने के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट का बटन आ जाए। इसी को मैंने जो है 4 टास्क में ब्रेक करके आपके लिए डाला हुआ है जीरा टिकट्स में। टास्क 1, पुटिंग एन आइकॉन ऑन टॉप राइट कॉर्नर, राइट, और इसके साथ में डिजाइन आप उस टास्क पे डाल दोगे। टास्क 2, राइट, सबमिटेड। इसकी जीरा बनाते हैं, चलो इसकी एक जीरा बनाते ही है। जीरा, जीरा अजवाइन बहुत जरूरी है लाइफ में भाई। नेवर लाइक एक और लाइक पूछना था लाइक एडवाइस कि when we will create the stories, so like at the end of the day we have to earn the respect of the engineer, right? So there will be many a times that we don't know the basic technicalities of a particular feature. So at that point what should we do कि यार ये मुझे पता नहीं है टेक्नोलॉजी, बट मुझे वो फीचर मैं वो मेरे वो आपसे ऐड करवाना है। टेक वाला आपसे टेक्नोलॉजी फॉर श्योर वो ग्रूमिंग में तो पूछेगा ही नहीं। अगर वो आपसे पूछेगा ना तो आप उसको बोल दो ये भाई ये तो इंजीनियरिंग का काम है, मेरा तो नहीं है। अच्छा। कभी नहीं पूछेगा वो आपसे। देखो टेक पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है इंजीनियर ये मान के चलते हैं कि आपको टेक का टी भी नहीं आता, ठीक है? ओके। इंजीनियर्स का जैसे हमारे अजम्पशंस होते हैं ना कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, वैसे इंजीनियर्स का अजम्पशन होता है कि तुमको टेक का टी भी नहीं आता। तो उसकी आप टेंशन मत लो। लेते बस लोग इसलिए हायर इसलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत टेक पता हो लोगों को, ताकि वो बाद में इशू ना फंस जाए कि वो कुछ भी जाके लोगों को कमिट कराए विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेक। लाइक AI ML से हम ऐसा जादू कर देंगे जिससे जो है नया इलॉन मस्क पैदा हो जाए, राइट? तो मतलब ऐसे टाइप के बिल्कुल एज केसेस ना प्रोड्यूस हो जाए। या आप फोन की डायरेक्टरी मैनेज करते हो तो आप बोल दोगे कि मैं उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल भी ले आऊँ। कैसे लाओगे यार जब फोन की डायरेक्टरी में फोन नंबर होगा? चलो ये जीरा में मैंने अकाउंट खोल लिया है। ये अकाउंट अकाउंट खोलना भाई मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद खोल लेना, ठीक है? अब देखो जैसे जीरा में बड़ा सिंपल होता है, ये बहुत काम का सॉफ्टवेयर है भाई, ये ध्यान से देख लेना, ये हर के काम आएगा। हर कंपनी में जीरा ही यूज होता है। जीरा का भाई है गिटहब, राइट? पर गिटहब ने भी ऐसा टूल बना दिया, पर सबसे अच्छा यही है। और ये बाय द वे ये कंपनी जो है यहाँ पे अगर जॉब मिल जाए तो छोड़ना मत,
किसी कंपनी ने ये विधाता कंपनी है फॉर प्रोडक्ट, दिस कंपनी क्रिएटेड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अरे ये क्या हो गया, छोड़ो। राइट नाउ सीधा, ठीक है। So Naivedya had this question that generally this sprint process is followed for now. This is a new feature deployment, right? But what about like if let's say a feature was deployed and usko there are many changes to be made. Do we follow the same procedures? सेम ही अप्रोच है ना भाई। देखो मैं ऐसा थोड़ी, सी दिस इज नॉट, दीज आर नॉट होली बुक्स राइट, व्हिच लाइक फॉर एग्जांपल महाभारत इज समथिंग व्हिच यू कांट एडिट, राइट? These are like education books, right? Which can be edited from time to time. मतलब लाइक स्टोरी, वही कि अगर एक स्टोरी अभी एडिट करना है, ठीक है, आप उस फीचर में कहाँ से, लाइक यू कैन नॉट अगेन सी मे बी देर आर मैनी अदर फीचर डिप्लॉयमेंट्स हैपनिंग विच आर वेरी न्यू एंड जिसको प्रायोरिटी है, अब तक इंजीनियर्स नहीं होंगे, तो यू विल हैव फीचर्स विच फेल, यू माइट हैव ओनली मे बी 1 or 2 मैन पावर अवेलेबल, तो तब यू कैनॉट क्रिएट अनदर ग्रूमिंग सेशन, फिर टास्क तो आप अपॉइंट करने टास्क के लिए। टास्क में वही तो बोल रहा हूँ, 4 टास्क है आपके आपके न्यू फीचर को कंप्लीट होने को, ओनली 2 टास्क कैन बी पिक्ड अप, राइट? सो योर रिलीज विल हैपन इन 2 स्प्रिंट्स, विच इज फाइन। 2 टास्क अभी करने हैं, 2 टास्क बाद में करने हैं, ठीक है। सेकेंड इज यू टॉक्ड अबाउट इनहांसमेंट, राइट? कि प्रोडक्ट लाइव हो गया है, वर्जन 2 आना है, राइट? सो अगेन यू विल क्रिएट विद इन स्टोरीज, यू विल क्रिएट न्यू टास्क एज एन एनहांसमेंट टास्क। दिखा रहा हूं मैं, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। वो आप लोग सब कुछ न्यू न्यू कर देना है ताकि ये सिखा दे आपको। देखो ये आपकी ऐसा बन के आ जाता है। देखो आपकी कंपनी का, आपको एक किसी जीरा बोर्ड का पार्ट बनाया जाए, राइट? आपका काम है इस बैकलॉग को भरना, राइट? सो हाउ वुड यू गो अबाउट फिलिंग दिस बैकलॉग? सो फॉर एग्जांपल मुझे एक नया वो क्रिएट करना है, राइट? इवेंट्स का ही करना है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये क्रिएट बटन दिख रही है डार्क ब्लू कलर की, यहाँ से ही सब कुछ क्रिएट होता है। मतलब the most obvious button that you see, that is the button you need to use, ठीक है। अब जो है देखो, एक एपिक बनाएंगे हम इसके अंदर, व्हाट्सएप, मान लो एक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का ही है, इसका मैंने नाम व्हाट्सएप इवेंट्स रख दिया, पर एपिक होगा इवेंट क्रिएशन, या नाम रख देते इवेंट्स फीचर समरी। दिस all items related to WhatsApp events, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है अपनी बेसिकली जो भी आपकी फाइल है, जिसमें सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मान लो आपका पीआरडी आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? ये आपका पीआरडी है सपोज, जो भी आपकी फाइल है वो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, लो भाई पीआरडी पढ़ लो, ठीक है, पीआरडी अटैच, ताकि कोई भी इस पे जो है वो कर सके। अब हमने क्रिएट कर दिया एक एपिक, ठीक है। अब जो है इस एपिक के अंदर जो है, राइट, यू वुड देन स्टार्ट क्रिएटिंग योर टास्क। ये एक एपिक बन गया हमारा। अब इस एपिक के अंदर आप जो है अलग अलग स्टोरीज बनाओगे,
देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट इशू इन एपिक, राइट? या तो वहां से क्लिक कर लो या तो नीचे से भी क्लिक कर लो, ऊपर से भी क्लिक कर लो, ठीक है? अब मेरे को एपिक नहीं बनाना है, अब मेरे को स्टोरी बनानी है। स्टोरी में डाल रहा हूं मैं एज अ यूजर whenever I click on groups I should see calendar icon। यहाँ पे फिर आप डिजाइन अपनी सबमिट करोगे और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, राइट? और यहाँ से आप असाइन कर दोगे जो भी आपको लग रहा है, जो भी इंजीनियर जो इस पे काम करेगा, और नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे, इंजीनियर कर लेंगे उसको, राइट? और इसमें आप एपिक का लिंक दोगे। एपिक है इवेंट फीचर, ठीक है? इवेंट्स के अंदर का ये जो है, ये फलाना स्टोरी बिलोंग्स टू दिस इवेंट एंड दिस बिलोंग्स टू दिस स्प्रिंट। स्प्रिंट्स ये इंजीनियर क्रिएट करेंगे, स्प्रिंट बी सी डी, राइट? यू विल जस्ट क्रिएट दिस स्टोरी, राइट? और फिर जो है आप बैकलॉग पे वापस क्लिक करोगे ना तो आपको वो दिख जाएगा। देखो ये एक दो बार आप यूज करोगे, कंपनी में तो वैसे ही आप रोज यूज करोगे, राइट? तो आपको आदत हो जाएगी जीरा को यूज करने की, राइट? तो अब इसमें जो है इंजीनियर्स जो है ना, इन सारे बैकलॉग्स को आपके उठाएंगे। आपको बैकलॉग्स में बस बता देना कि देखो मेरे ये इंपॉर्टेंट टास्क है। अब ये वाला जो है, इसके अंदर जो है, राइट, यू वुड स्टार्ट क्रिएटिंग योर टास्क। अरे हाँ, अब इसके अंदर, राइट, आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग माय टास्क। अब नाउ आई नीड टू क्रिएट अ टास्क, ठीक है? दिस टास्क बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर, राइट? and then I will essentially associate this with a story। तो इसमें यहाँ से नहीं दिया हुआ है, ये जीरा का नया वर्जन है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है? इस इसके अंदर जो है, राइट, आई विल एक्चुअली, ये प्रेस क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ये आपने, सो इसमें इन्होंने अब टास्क और सब टास्क का हटा दिया है। इन्होंने बोला है कि स्टोरी के अंदर सिर्फ आप सब टास्क बनाओ। तो इस स्टोरी के अंदर जो है आप सब टास्क बनाओगे। तो पहला सब टास्क है, राइट, शो शो आइकॉन ऑन टॉप राइट, ठीक है? क्लिकिंग शुड लीड टू नेक्स्ट पेज। क्या कहते हैं, दूसरा ये डाल दो कि मतलब क्लिकिंग शुड ओपन न्यू पेज। सो ये मान लो ये आपके दो टास्क हैं, ये दोनों आपने सब टास्क डाल दिए इस स्टोरी से एसोसिएटेड। फिर एक और नई स्टोरी आप बनाओगे कि एज अ यूजर whenever I click on calendar icon, नेक्स्ट स्टेप हमको क्या है, whenever I click on calendar icon I should see following things: event name, set time, set date, set venue। I should see following things to submit। और फिर मैं इस टास्क की थोड़ी और डिटेल्स डाल दूंगा, राइट? यहाँ पे तो सिर्फ समरी डाली है, राइट? फॉलोइंग थिंग्स में आएगा क्या? फॉलोइंग थिंग्स में ये चार चीजें आएंगी जो आपने पीआरडी में लिखी हुई है: इवेंट नेम, सेट टाइम, सेट डेट, सेट वेन्यू।
राइट, एंड देन आपको एक CTA प्रोवाइड करना है विच अलाउस टू सबमिट द रिक्वेस्ट। अब इसमें जो है राइट, इवेंट नेम में जैसे है, इवेंट नेम मान लो इस सब चीज का एक एग्जांपल डाल देना चाहिए हमेशा, एग्जांपल पार्टी मीटिंग, कुछ भी डालना हो, राइट। टाइम में यू नीड टू मेंशन, राइट, टाइम टाइम should open calendar, should open 24-hour format, डेट में should open calendar to choose date, venue में should be able to select via GPS and should also be able to type। फिर आप जो है, ये आपकी एक स्टोरी जो है बन गई। समझ गए आप? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ इस तरीके से आप जीरा में। अब फिर इंजीनियर वो इन सारी स्टोरीज को उठा के जो है अपने स्प्रिंट में जो है वो एक स्प्रिंट बनाएंगे, राइट। सो मेरे को ये पता नहीं है स्प्रिंट बनाते कैसे हैं, राइट, पर वो एक स्प्रिंट बनाएंगे, राइट। और फिर ये जो है ना, जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं, उन सारे टास्क को वो मूव कर देंगे, मतलब वो बेसिकली इसको उठाएंगे और डाल देंगे अपनी स्प्रिंट में कि हाँ ये हम करने वाले हैं। और आप जो है एक्टिव स्प्रिंट्स को ट्रैक कर पाओगे कि कौन कौन से टास्क अभी करने हैं, कौन कौन से टास्क अभी प्रोग्रेस में चल रहे हैं, और कौन कौन से टास्क डन हो गए हैं जिनको आपको टेस्ट करना है। मतलब यहाँ पे बेसिकली टू डू लिस्ट टाइप की बन के आ जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर स्प्रिंट बन भी जाए। हाँ ठीक है, चलो क्रिएट स्प्रिंट आ गया, ठीक है। तो इंजीनियर से ब्रूमिंग डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला चलो हम तुम्हारे दोनों टास्क को उठा लेंगे, ठीक है, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं इस बार तुम्हारे दोनों टास्क हो जाएंगे, तुम नए PM आए हो तो तुम्हारे दोनों टास्क ही ले लेते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। और फिर उसके बाद जो है आप एक्टिव स्प्रिंट पे अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे जो है अभी जो है अभी फिलहाल एक्टिव स्प्रिंट पे आया क्यों नहीं, हाँ सॉरी। फिर इंजीनियर्स जो है डिस्कशन हो जाएगा और उसके बाद जो है स्प्रिंट का नाम रखेंगे कि स्प्रिंट A हम करने वाले हैं, स्प्रिंट B हम करने वाले हैं, जो भी उनको नाम रखना है। इसका ड्यूरेशन 2 वीक होगा, राइट। और ये स्टार्ट कर दिया। अब वो स्टार्ट जैसे ही कर देंगे ना, आपको देखो ऐसे टास्क दिखने लगेंगे। फिर इंजीनियर्स एक एक करके टास्क उठाएंगे और जैसे जैसे वो कोड लिख देंगे, कंप्लीट कर देंगे, उसको डाल देंगे कि देखिए ये ओके, ठीक है, ये हो गया है, ये भी मैंने कर दिया है, राइट। और फिर जो है एक टास्क मान लो आपको स्प्रिंट के एंड में कंप्लीट होता देखा कि शो आइकॉन ऑन टॉप आपको कंप्लीट होते देख गया, और ये दोनों कंप्लीट हुए हैं, ये इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है। तो आप जो है फिर क्या बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ये दोनों को मैं टेस्ट कर लेता हूँ, अगर ये ठीक चल रहे हैं तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ, इनको क्लोज करो। ये जो एक बचा हुआ है, राइट, ये वाला टास्क जो है इसको मैं वापस बैकलॉग में डाल रहा हूँ ताकि अगली बार फिर स्प्रिंट प्लानिंग में इसको फिर प्रायोरिटाइज कर पाऊँ। क्लियर हुआ थोड़ा होता कैसे है? या Yes, yes. तो जब एपिक बनाते हैं, जब भी टोटल एपिक का टोटल टास्क एक एकदम क्रिएट कर देते हैं जीरा में। हाँ हाँ हाँ। अब फिर एक्चुअली मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एपिक बनाता हूँ और सारे टास्क डाल देता हूँ, ये वाला टास्क को नहीं, ये वाला टास्क को नहीं, ये वाला टास्क को नहीं, और फिर उसके बाद है ना प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से स्प्रिंट में डालते हैं। हाँ, वो स्प्रिंट में वो जॉइंट डिस्कशन होगा। सिमिलरली जैसे ये डेवलपमेंट की स्प्रिंट है, ऐसे ही डिजाइनर की भी स्प्रिंट्स होंगी, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट होगा, राइट। तो आप मतलब वो उनका एक अलग बोर्ड होगा, उस बोर्ड में उन्होंने आपके डिजाइन है तो वो डिजाइन आपको देंगे, फिर वो डिजाइन्स को आपको डाउनलोड करके जो टिकट में डिजाइन रिक्वायर्ड है ना, उसमें आपको उठा के पेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सेटअप डिजाइन। भी सिमिलर ही है ना, ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। हाँ हाँ, देखो दोनों ही देखो जैसे जीरा का बिट बकेट होता है, राइट,
जीरा कंपनी मतलब जीरा एटलासियन का बिट बकेट होता है, सिमिलरली गिटहब का होता है, उसमें भी ऐसे ही आ जाता है। इसको बोर्ड बोलते हैं, कैनबन बोर्ड। बेसिकली करना क्या है, इन प्रोग्रेस में क्या है, डन क्या है, समझे? या उसमें खाली एपिक की जगह प्रोजेक्ट, हाँ यार देखो, नाम अलग। नाम सबके अलग हो सकते हैं, वो तो हर हर कंपनी में जाओगे एक नया नाम मिलने को सुनने को मिल जाएगा, राइट? बट एपिक इज सबसे सिंपल, समझ गए ना? थीम होती है, फिर एपिक होता है, फिर स्टोरीज होती है, या राइट? स्टोरी के अंदर और सब टास्क भी बना सकते हो हर स्टोरी के। ये इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए 2 टास्क करने पड़ेंगे। देखो, ये सब के बाद भी बेसिक्स अभी भी सेम है। बेसिक्स अभी यही है कि सबसे पहले विजन होता है, विजन के बाद रोड मैप यानी पीआरडी बनाना पड़ता है, पीआरडी के बाद जो है बेसिकली वर्जन 1 को लॉन्च करना होता है, लॉन्च करने के बाद वर्जन 1 को ट्रैक करके उसको आइटरेट करना होता है, और आइटरेट करने के बाद डेली लेवल पे जो है, इसको कहते हैं स्टैंड अप, इसको कहते हैं स्टैंड अप मीटिंग या स्क्रम मीटिंग भी कई लोग बोलते हैं। तो स्क्रम या स्टैंड अप में ना, रोज आपकी मॉर्निंग में इंजीनियर्स के साथ, राइट, पीएम प्लस इंजीनियर प्लस डिजाइनर, मतलब अगर आपकी टीम में 4 हो सकता है ना, 4 इंजीनियर हो, लाइक एक एंड्रॉइड का इंजीनियर हो, एक आईओएस का इंजीनियर हो, राइट, एक बैकएंड का इंजीनियर हो, राइट, एक टेस्टिंग वाला हो, टेस्टर या क्यूए बोलते हैं जिसको, राइट, एक डिजाइनर हो, और आप पीएम, और हो सकता है आपके ऊपर जो सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है या वीपी प्रोडक्ट है, जो भी है, रोज जो है एक 15 मिनट का कैचअप करते हैं। इसमें से 3 डिस्कस चीजें होती हैं। व्हाट टास्क आर यू डूइंग टुडे, व्हाट टास्क यू डिड टुमारो, यू डिड यस्टरडे, सॉरी यार, यू डिड टुमारो तो वो नहीं है ना, टुमारो नेवर कम्स। व्हाट टास्क यू डिड यस्टरडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, एंड व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स यू आर सीइंग। लाइक जैसे आपका ही ये वाला टास्क था, तो वो इंजीनियर आया, बोला यार देखो मैं अभी ये वाले टास्क पे तुम्हारे काम कर रहा हूँ, शो आइकॉन ऑन टॉप राइट, ये वाला टास्क जो है हो गया है। एक ये कैलेंडर आइकॉन में मेरे को डिजाइनर से थोड़ा 1-2 चीजें की और चाहिए इनपुट, तो ये एक मेरे को मेजर रोड ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है? तो फिर है ना, आप उसी स्क्रम में बोलोगे डिजाइनर से कि यार एक काम करें, आज इनके साथ एक कॉल शेड्यूल कर लेते हैं 15 मिनट की, और इनका फिक्स करा के इनको अपडेटेड डिजाइन जो है इनकी जीरा टिकट पर डाल देते हैं, ताकि ये अपना काम जो है, जो भी जिस चीज पे भी ब्लॉक हुए हैं, ये अपना कर लेंगे कंप्लीट, और फिर उसको भी कंप्लीट करके सबमिट कर। क्लियर हुआ थोड़ा? लाइक होता कैसे है काम, लाइक मतलब डे इन डे आउट होता क्या है, मतलब काफी सिंपल होता है, राइट? वही बेसिक्स हैं, राइट? रोज का एक कैचअप होता है, राइट? और रोज जो है वो, आपको बस ये ध्यान रखना है, मेरे को एक स्प्रिंट आगे रहना है, राइट? इस स्प्रिंट का नहीं सोचना है, इसके बाद का सोचना है क्या होगा। मैं तो एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ। अभी जब टास्क डिसाइड करते हैं उसमें प्रायोरिटी कैसा डिसाइड करते हैं? क्योंकि जब एपिक टोटली कंप्लीट होगा जब भी अपन प्रोडक्ट, जब भी वो फीचर लॉन्च कर सकते हैं, हाँ, एपिक कंप्लीट होगा तभी वो फीचर लॉन्च जब होगा, लॉन्च होगा तो राइट? फीचर के अंदर जो टास्क अपन क्रिएट करते हैं उसको कैसा जो है प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर सकते हैं? देखो, प्रायोरिटी के लिए एक अप्रोच यूज होती है जिसको मैंने एक बार पहले भी बताया, मैं राइस, वापस बता दे रहा, राइस, जी हाँ। है ना? तो राइस में क्या क्या होता है? रीच, जो कि पीएम बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है कितने लोगों तक पहुंचेगा, हाँ, राइट? और ये भी खुद से नहीं बताता है, ये भी एक जन से पूछ के जाता है, मार्केटिंग वाले से पूछता है, राइट? दूसरा, तुम बताते हो इसका इम्पैक्ट, यार ये देखो ये कितना यूजफुल है फीचर, ठीक है? इसके बाद जो है तीसरा, आप जो बताते हो ये कि कॉन्फिडेंस, यार ये इस पे मैनेजमेंट जो है काफी बुलिश है, ये चल रहेगा। और तीसरा होता है इंजीनियरिंग एस्टिमेट, इट हाउ डिफिकल्ट द टास्क इज। तो मान लो मैंने, तो मैं जो ये इनको शीट सबमिट करता हूँ ना, फाइनल लिस्ट ऑफ टास्क,
इसमें मैं 3 कॉलम बनाता हूँ हर टास्क के अगेंस्ट, लाइक टास्क 1 के अगेंस्ट मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, राइट? कि ये देखो टास्क 1 जो है, टास्क 2 जो है, टास्क 1, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, राइट? ठीक है, टास्क 1 जो है वो उस ये तीनों, अगर मान लो ये तीनों एक ही से रिलेटेड है तो मैं सिर्फ स्टोरी की बात करूंगा। अगर मान लो तीनों इंडिपेंडेंट है तो मैं तीनों को अलग अलग बताऊंगा। तो बोलूंगा यार देखो, ये रीच के हिसाब से ये 4 स्कोर है, राइट? इम्पैक्ट के हिसाब से 3 है, बट मैनेजमेंट इज रियली बुलिश अबाउट इट, तो ये 4.5 स्कोर है। इसको इसका 5 का 5 स्कोर है, इसका 3 है, इस पे कॉन्फिडेंस कम है, राइट? इसका 3 है, इसका इम्पैक्ट 4 है, कॉन्फिडेंस 1 है, राइट? एंड फिर उसके बाद जो है टीम्स ने, इंजीनियर्स ने जब आपके साथ ग्रूमिंग सेशन किया और उसके बाद फाइनल लिस्ट सबमिट करी, तो वही एक और कॉलम ऐड कर देते हैं एस्टिमेट का। उसमें वो उन लोग कहते हैं उसको स्टोरी पॉइंट्स, वो भी लेकिन 0 से 5 के बीच होता है। तो उन्होंने बोला यार ये देखो, ये टास्क थोड़ा सा मतलब मीडियम डिफिकल्टी का है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये काफ़ी ईजी है। फिर आप जो है, फिर उसके बाद जो है चौथा कॉलम होता है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, बोले तो रीच इनटू इम्पैक्ट इनटू कॉन्फिडेंस डिवाइडेड बाय एस्टिमेट, ठीक है? ऐसे करके जो है रेटिंग आ जाती है। ये फीचर को करते हैं, टास्क को कैसा करते हैं? जैसे सिर्फ अभी एक फीचर को बनाने के लिए अपन उसको वी विल डिवाइड इट इनटू डिफरेंट टास्क, राइट? तो वही है ना, मैंने बोला इंडिपेंडेंट है, वरना आप पूरी स्टोरी को रखोगे तो स्टोरी के अंदर अगर मान लो इस स्टोरी से रिलेटेड ये तीनों टास्क है, राइट? टास्क 1 2 3, तो तीनों का एक ही होगा, रीच इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस। ओके। आप एक ही सबमिट कर दो ना, फिर इंजीनियर्स भी एक ही रेटिंग सबमिट करेंगे। हाँ। देखो क्या हो रहा है, ये आपके टास्क हैं, ऐसी नैवेद्य के भी टास्क हैं, ऐसी हाँ। नील के भी टास्क है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रायोरिटी चाहिए ना इंजीनियरिंग को। तो जी जी। Never, like, sorry to interrupt, but लाइक शायद रिजवान जो जो ये पूछ रहे थे कि एक पर्टिकुलर स्टोरी को व्हेन वी विल डिवाइड इन टास्क, तो उसे कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आया, लाइक मतलब टास्क तो सिस्टमैटिक होते हैं ना, कि अब जैसे कि इवेंट मैं फीचर समझ गया, बनाना आप है। बोल रहे हो रिलेटेड टास्क है सारे, right? हाँ, तो मैं तो वही बोल टास्क तो टास्क 1 के बाद ही होगा वैसा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो तुम तीनों की तीनों चीजें सेम कर देते हो। हम्म। अरे ये तीनों भाई रिलेटेड टास्क है, तीनों स्टोरी 1 से ही रिलेटेड है, इन सब की रीच इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस सेम है। इंजीनियरिंग को तो बस अपना एस्टिमेट चेंज करना है ना, राइट? इंजीनियरिंग ने बोला कि चलो ये वाला टास्क जो है वो इजी है, इसमें देखो तुम्हारे लिए तो ये तीनों टास्क इज अ पार्ट ऑफ स्टोरी, राइट? तो तुम तो स्टोरी लेवल पे कर रहे हो रेटिंग, राइट? इंजीनियर्स टास्क लेवल पे रेटिंग करेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इंजीनियर्स जो है वो अपनी प्रायोरिटी चेंज कर देंगे, राइट? तो इंजीनियर्स को दिख रहा है यार ये इसकी स्टोरी में टास्क 3 जो है ये बड़ा इजी लग रहा है, ये पहले टास्क 3 उठाओ, या जो जूनियर इंजीनियर है उसको ये वाला टास्क पकड़ाओ, जो सीनियर इंजीनियर है जिसके केस में डिफिकल्टी सबसे ज्यादा लग रही है अपने को, उसको ये वाला टास्क दो। ओके। तो वो है ना, तो स्टोरी 1 सपोज नैवेद्य ने सबमिट करी, सिमिलरली स्टोरी 2 जो सपोज आपने ही ऋषि सबमिट करी, राइट? ठीक है, और उसमें जो है टास्क 1.1, टास्क 1.2, टास्क 1.3, मतलब उसके अलग अलग टास्क हो गए, या टास्क ए बी सी जो भी बोल लो, ए टास्क बी टास्क सी, जो कि स्टोरी 2 को करेस्पॉन्ड करते हैं। तो पीएम इनके भी इंडिविजुअल स्कोरिंग और रेटिंग देगा जो भी उसने दी, यार इसकी रीच जो है 3 है, इसका इम्पैक्ट जो है 5 है, इस पे कॉन्फिडेंस भी 5 है, राइट? और ये तीनों स्टोरीज, क्योंकि तीनों टास्क जो है वो इसी स्टोरी को बिलोंग करते हैं, तो मैंने तीनों की एक सी रेटिंग कर दी है। अब इंजीनियर्स ने एस्टिमेट करा, इंजीनियर्स ने बोला यार इसकी डिफिकल्टी 2 है, इसकी 1 है, इसकी जो है 5 है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये, राइट? फिर जो है इंजीनियरिंग जो है वो रेट करा, राइट? तो उन्हें समझ में आया कि यार ये देखो, एक काम करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क तो ये है, ऋषि का टास्क है उठा लो सबसे पहले, क्योंकि 37.5 है उसकी, ये सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 75 है इसकी रेटिंग। तो इंजीनियरिंग विल पिक दिस टास्क एज प्रायोरिटी 1,
then they will pick this task, then they will pick this task, then they will pick this task, right? Or then they will take pick this task, and then they will take pick जो है this task. समझ गए? So Naivedya, तो एक क्वेश्चन था, तो like it's the same one which they asked me in the interview. So like if we are talking about a feature which is like a 0 to 1 feature which doesn't have any data to back it, तो वो feature को number one, like how will we rate those features on impact, confidence and this reach, and if that feature fails, so what should be done at that time, कि अगर फीचर फेल हो गया तो क्या करना चाहिए? तो यार उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, राइट? देखो, रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस इज समथिंग व्हिच यू रेट आउट ऑफ राइट योर काइंड ऑफ, सी कॉन्फिडेंस इज समथिंग व्हिच पीएम हैज, ये कितना चलने की प्रोबेबिलिटी है, राइट? तो वैसे सॉरी टू डिस्टर्ब, बट लाइक अगर वो फीचर के लिए बैकअप के लिए डेटा नहीं है तो लॉन्च क्यों कर रहे हैं फिर? लाइक कैन वी आस्क दैट टू हिम? यार Estimates. That's why I told वो which is a new feature which जो अब तक मार्केट में नहीं है, वो फीचर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं. नहीं तो गेस्टिमेट तो है context. ना तुम्हारे पास, गेस्टिमेट तो है ना, उसी लिए तो तुम गेस्टिमेशन करते हो. Which मतलब इवन इंटरनली फीचर के लिए बैकअप डेटा होना चाहिए, राइट? कि ये if you've decided on that data, I mean that feature, it is a probability that it should be launched. कोई तो डेटा सपोर्टिव होगा, राइट? यू कैन नॉट जस्ट लाइक ब्लाइंडली कम अप विद दैट एंड से स्प्रिंट में डालेंगे. तो जस्ट आस्किंग लाइक यार या तो that देखो was- ऐसा है, ये रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस के बाद जो है ना एक हिडन होता है, राइट? जिसको कहते हैं सीईओ चॉइस. ठीक है, या तो तुम ऐसा है सीईओ से अप्रूवल ले आओ, कोई कुछ नहीं बोले, और इसका जो है वेटेज इतना होता है. ठीक है, या तो तुम ये है कि सीईओ ने बोला है इसलिए मेरे को करना है. अदरवाइज कोई इंजीनियर क्यों उठाएगा तुम्हारे टास्क को जब तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? तुम ये तो बताओगे ना, यार ये देखो मैंने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी है एंड आई थिंक दिस माइट एक्चुअली create a massive impact and I see that there is a probable audience which can be reached because हमारे ऐप पे 1000 यूजर्स आते हैं, राइट? 1000 में से अगर मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ तो मैंने बाकी पीयर न्यूली लॉन्च्ड ऐप्स का देखा था, तो मतलब न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स का देखा था, तो उसमें इतना एंगेजमेंट आया था, तो आई एम थिंकिंग कि इतनी रीच तो होगी एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट बिकॉज मेरे को डेटा जो है वो मार्केटिंग से भी मिला है और मैंने इसको वैलिडेट भी कराया है, राइट? And by the way, right, I mean, this is something which management is also bullish about. तब तो आप वो करोगे ना, आप ऐसे जाके बोलोगे कि मेरा ये टास्क है और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो थोड़ी ना इंजीनियर्स ड्रीम प्रोजेक्ट फुलफिल किए कर रहे हैं. मतलब समझ रहे हो ना आप, इंजीनियर को सैलरी मिल रही है और मतलब इंजीनियरिंग टीम सबसे ज्यादा कॉस्टली टीम होती है, तो वो तो टास्क बिल्कुल उसी हिसाब से उठाएंगे, लाइक वरना वो आपको ग्रूमिंग सेशन में एज सिद्धार्थ इज सेइंग, राइट? सो सिद्धार्थ इज अ पीयर पीएम हु इज क्वेश्चनिंग यू. इमेजिन इंजीनियर्स व्हाट दे विल डू इफ यू डोंट हैव दिस डेटा. तुमको तो वो टास्क को स्प्रिंट में लाना ही नहीं चाहिए. मतलब यू विल नीड समथिंग और द अदर, राइट? इन द एब्सेंस ऑफ डेटा एज वेल, राइट? यू काइंड ऑफ देन यू हैव टू टेल देम कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और एक्चुअली में कुछ नहीं मिल रहा है, राइट, देन यू जस्ट नीड सीईओ's अप्रूवल. अगर in absence of data, bring CEO's approval. So we can put this also, right, that the insights from customer surveys or customer feedback उसके हिसाब से भी हम लोग हाँ उसी के हिसाब से. सी ये नंबर फिल आपको यही तो बताना है. वो इंजीनियर आपसे पूछेगा ये तुमने रीच कैसे निकाली 4, हो सकता है तुमने सर्वे करके निकाली हो सकता है तुमको वो चीज ही तो ग्रूमिंग में बतानी है, यार मैंने सर्वे किया था उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है काफी लोगों को चाहिए फीचर, राइट? तभी मैंने उसको 4 रेटिंग दी है.
ओके राइट. इंजीनियर्स कैन क्रॉस क्वेश्चन यू कि कैसे तुमने किया है, एंड दे माइट टेल यू कि यार और डेटा लेके आओ, right? Because we don't agree with your 4 number with this task, right? That's okay, right? But you need to still fill these numbers, right? This is your मतलब ये तो तुम्हारा धर्म कर्म सब कुछ है ना. and never they like just like your insight from your day-to-day distinct responsibilities. तो ऐसे मतलब usually ऐसे करके फीचर्स कितनी बार होते हैं मतलब इन अ क्वार्टर और इन अ ईयर कि आपको कुछ नया ट्राई करना है? बहुत बार होते हैं, हमेशा. अभी हम एक नया बना रहे हैं, राइट? चलो मैं एक एग्जांपल तुमको लाइव दिखा रहा हूँ. मेरी टीम के ही एक बंदे को मेरी ही टीम के एक बंदे को मैंने वो किया था, विशाल. तो हमें कुछ ऐसा गोल बेस्ड प्लानिंग का बनाना है. इसमें तो नहीं होगा मेरे पास. तो हम बेसिकली नया क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट गोल्स का फ्लो बना रहे हैं. मतलब आपको अगर एफडी में पैसा लगाना चाहिए तो ऐसा है कि यू आर इन्वेस्टिंग इट फॉर कार, यू आर इन्वेस्टिंग इट फॉर, सो वी आर काइंड ऑफ डूइंग अ गोल बेस्ड काइंड ऑफ, इसमें आप गोल सेट करोगे और बेसिकली आपका चार्ट बन के आएगा कि कितने परसेंट आपने अचीव कर लिया है, कितने परसेंट नहीं करा है, राइट? समथिंग सम एनालिटिक्स ऑफ सम सॉर्ट, राइट? ऐसे टाइप की कुछ टाइमलाइन आएगी, इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन बना रहे हैं. तो वो बेसिकली ऐसा बन के आएगा कि आपका 2015 में इतने परसेंट हो जाएगा. ये दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फीचर इन इंडस्ट्री, सारी कंपनीज नहीं ला रही है, राइट? बट इसका डेटा हमें कैसे मिला, तो हम बता सकते हैं कि यार कस्टमर, मैंने एक्चुअली में काफ़ी सारे कस्टमर से बात करी, राइट? उन्होंने बोला यार हमको इस तरीके का गोल चाहिए, राइट? जिसके हिसाब से हम एफडीज में भी नाम डाल पाए कि ये एफडी मेरी मदर की है, ये एफडी मैंने अपने बच्चे के लिए की है, ये एफडी मैंने एजुकेशन के लिए करी है, राइट? सो उनका फीडबैक जो है उसको बेसिस पे मैंने वो रेटिंग करी. तो इट काइंड ऑफ हैपेंस ऑलमोस्ट इन एवरी स्प्रिंट, दिस विल हैपन. मतलब तुम्हारा तो काम ही है ना, तुम मतलब डे वन की स्लाइड याद है, मैंने सबसे पहले बोला था कस्टमर एडवोकेट हो. वो तो तुम्हें करना ही करना है. ये तो मतलब सिर्फ छोटा सा काम है तुम्हारा. बाकी तो कस्टमर फीडबैक तो तुम दिन भर ही लेते हो ना. तो कस्टमर फीडबैक से ही तो ये सब चीजें पता चलती है, रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस. तो इट इट हैपेंस अ लॉट. ऐसा कोई हवा से न्यू प्रोडक्ट नहीं होता है. All products have some premise. Even if you are a startup and you are building your first version ना, उस टाइम भी आप जो है कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ते हो, कुछ स्टार्टअप्स को एनालाइज करते हो, जिसके थ्रू आप इन 3 नंबर पे पहुंचते हो, राइट? सो इट नेवर हैपेंस कि ये 3 डेटा नहीं होगा. मतलब ऐसा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा. मतलब ये नंबर तो आप ले ही आओगे, मतलब लाने ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है, उठाएगा ही नहीं कोई काम. It kind of happens on a very, very, very kind of, I would say in a sprint, if I am picking up 5 stories, 3 stories are because of in which we are doing something new, at least in Paytm. मतलब 3 में तो हम कुछ ऐसे ही ट्राई कर रहे होते हैं जो कि नहीं होता है पहले. तो इसमें रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस वहीं से आता है. मतलब कस्टमर्स पे है, कितने कस्टमर के कुछ सर्विस है, वहां से डेटा निकाल के हम ये निकालते हैं. लाइक मैंने उनको सर्वे भेजा कि इफ वी गिव यू अ फंक्शनैलिटी लाइक दिस, हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली यूज इट. तो लोगों ने वोट दिया, राइट? उससे मेरे को इम्पैक्ट पता चल जाएगा, राइट? पेटीएम की कितनी ऑडियंस है जिनको हम सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेज के रीच कर सकते हैं, तो उससे हमें रीच पता चल जाएगी. अब एफडी सब तो बना नहीं सकते. एफडी तो वही बनाएंगे जिनका पेटीएम में बैंक अकाउंट है. तो ऐसे यूजर्स निकाल लिए जिनके बैंक अकाउंट्स है. तो 40% ऑफ यूजर्स ऑफ पेटीएम हैव पेटीएम बैंक अकाउंट. So reach is 40%, right? So 40% is roughly 2, right? So I would kind of roughly is roughly हाँ 2 ही होगा, right? So मैं यहाँ पे 2 रीच दूंगा. और क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये फीचर जो है काफी लोगों ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिव्यू दिया, तो आई विल रेट इट 4. दीज आर ऑल सब्जेक्टिव रेटिंग्स.
मतलब ये सिर्फ स्प्रिंट प्रायोरिटाइज। और हाँ, बाय द वे यू कैन नॉट फ्लूक इट कि सबको 5-5-5 डाल देता हूँ तो मेरी तो हमेशा ऊपर हो जाएगी, तो अगले दिन तुमको जो है सीपीओ या सीटीओ का कॉल आ जाएगा, क्यों भाई ये 5 कैसे दिया, राइट? सो दैट्स हाउ इट गोस। क्लियर हुआ कुछ ऋषि इन सम? Yes, yes, yes. I got perspective. हाँ, सो मतलब आप बेसिकली ये मत जाओ, मतलब आपसे कोई इसकी लॉजिक पूछ सकता है, मतलब हर जो आप नंबर रेट करोगे ना उसकी लॉजिक आपसे पूछी जाएगी, और इंजीनियर्स को पूछना भी चाहिए ये कहाँ से निकल रहा है कि ये इतने कॉन्फिडेंट हो, ये चलेगा? मतलब इंजीनियर्स तो एक्चुअली में सबसे पहले डायलॉग यही बोलेंगे, ये बना तो देंगे, चल जाएगा ऑब्वियसली। तो वो तो यार तुम बोल रहे हो कि तुम रात को बैठ के ये कर दो कोड, और तुम बाद में ये बोल दो कि यार पता नहीं है मेरे को चलेगा कि नहीं, तो वो तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारा काम कभी करेगा, गिवन दैट तुम तो उसका अप्रेजल देखते नहीं हो। वो तो अपने जब उसका अप्रेजल हो रहा होगा बोला यार ये तुमने डी में क्यों किया, तो वो तो बोल देगा सीधे सीधे यार वो पीएम को भरोसा ही नहीं था ये करने का, तुम्हें काय को जगता। मतलब तो वो तो सीधे सीधे निकल गया ना। ये थोड़ा सा रियल वर्ल्ड वाला सेशन था, राइट? एंड गाइस विद व्हिच आई वांटेड टू काइंड ऑफ कवर फॉर यू गाइस, राइट? हाउ इट इज। बाकी तो ये पुरानी, एक्चुअली में मैंने पुराने वाले में ये बनाया था, तो ये मैं सारी हटा देता हूँ। तो राइट, सो तुम्हारी जो खुद की भी टू डू लिस्ट होती है ना वो एक्चुअली में काफी सिमिलर होती है एजाइल से। ऐसे ही तो बनाते हो ना, टू डू इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, वही है सेम चीज, राइट? व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। Guys, I think the questions, right? So Rizwan, I'll connect one-on-one with you, right? I guess Siddharth, right? We will kind of cover yours and Rishi's presentation in that session, right? Where we will cover. We'll see the progress of how Tableau or Power BI, any analytics tool is shaping up, right? In a separate session. Any questions we have? नहीं वैसे सो आई वाज थिंकिंग कि अगर एक बार ये सब हो जाएगा तो लाइक लाइक कैन वी डू अ लाइव केस स्टडी जहाँ हम सब लोग अपने इनपुट देके एक कोई पर्टिकुलर केस स्टडी करें, बिकॉज दैट विल हेल्प अस। हाँ, मतलब तुम जीरा बनाना चाहते हो उसके? नहीं नहीं नहीं, लाइक लाइक ब्रेकिंग डाउन अ केस स्टडी कि यार ये फीचर फार्मेसी में ये फीचर डालना है तो हाउ विल यू प्रायोरिटाइज इट, वायरफ्रेम कैसा होगा, वैसा। वैसे मजा नहीं आएगी, मैं बताऊं कुछ लाइव बनाना ही पड़ेगा। अगर उसमें इन हो तो मैं तो मतलब मोर देन सुपर इन हूँ, पर उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पर मतलब एक बार डिस्कस कर लो कि हमें एक्चुअली में कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो आई एम मोर देन इन। मतलब मेरे पास तो अ, मेरे पास दो लोग ऐसे हैं, मेरे पास एक लाइव आदमी है जिसका एक्चुअली में करना है भी है ये काम। तो नील वो आपका वो वाला है राइट, शिपिंग के लिए, राइट? वी वांट टू बिल्ड समथिंग, राइट? हाँ API। Right, we need to kind of do so basically ऐसा है, Neil is working in shipping industry, right? And he is and we were discussing कि we can we build something, right, for shipping industry में, right? Like बहुत सारे challenges है, like कितनी, like किसी को अगर अपने containers book करने हैं तो वो कैसे book करेगा, right? So can he track कि अभी कौन कौन से shipping routes अभी open है, कौन कौन से blocked है, right? Can we build something around it, right? So that's one idea which is there. The other one is with Siddharth, right, which I was discussing. Siddharth, याद है, right? We discussed about building something for COVID, right? Yeah, exactly. Like how many news, like Twitter पे क्या sentiment चल रहा है, और we can do together something for crypto. कि हम क्रिप्टो का सेंटिमेंट एनालिसिस करें और हम हर कॉइन का, क्योंकि देख रहे हो ना इलॉन मस्क का ट्वीट आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। कैन वी बिल्ड दैट? अभी if we are doing it immediately, we can do a sentimental analysis for COVID. क्योंकि अगर क्या tweets चल रहा है, and I guess that was a very good idea. हाँ, फॉर कोविड कर सकते हैं, तो पैसा कमाना है तो बिटकॉइन के लिए कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा बिटकॉइन के लिए करो अब। हाँ, मैं भी। क्योंकि कोविड 19 के लिए काफी लोगों ने बना लिया है,
sentiment analysis for cryptocurrency, right? Can we build a product like this, sentiment करके? ये देखो इसमें बढ़िया आ जाएगा, कितने लोगों ने ट्वीट करा है, इलॉन मस्क का इस करेंसी के बारे में क्या कभी ट्वीट हुआ है, कौन कौन से लोग हैं जो जिन्होंने ट्वीट करा है इस प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद इसकी करेंसी का प्राइस कितना बढ़ा है या घटा है. We can build analytics tool पे we can build a dashboard, right, which will show this. इसको back करेंगे कुछ APIs which we can work together on, right, and then we can actually build a website and actually launch it. चाहते हो तो करना, तो मतलब Sounds doable. हाँ Sounds doable. मतलब एक दिस इज एक्चुअली गुड, ये कर सकते हैं. हाँ, हर एक का जहाँ पे वीक पॉइंट है वो सीख भी जाएंगे यहाँ पे. और अगर ये करना है तो मैं मोड़ देने लूँ भाई, मतलब मेरे को तो ये काफी सही लगता है, मतलब ऐसा हम प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दे अपने नाम से, वेबसाइट हाँ, वेबसाइट जो है वो उसमें, तो वेबसाइट वगैरह तुमको ये चाहिए इस टाइप की वेबसाइट, इससे और अच्छी बना लेंगे तुम, राइट, ऐसे सबके नाम डाल के, राइट, एक लाइव प्रोडक्ट होगा. अब मेरे को तो ऐसे ही लग भी रहा है, sentiment.net ऐसी कोई सस्ते किसी ने बनाया है, राइट, तो नहीं थोड़े महंगे हैं तो. गोरे तो महंगे. हाँ वही वही, सॉरी. तो लो, है दे इसमें काफी फीचर वीचर भी है, वो छोड़ो, लेकिन हम भी ऐसे ही बना सकते हैं, हम सिंपल बना देंगे. इंडिया के केस में क्या चल रहा है, बिटकॉइन, ट्रॉन, तो अगर ऐसा चाहिए, राइट, तो वी गाइस कैन एक्चुअली डिस्कस, राइट, कि क्या वो क्या करना. पैसा. हाँ एंड उसके बाद बढ़िया है, फिर उसके बाद हम बोलेंगे भाई, मेरे को बहुत से लोगों का कॉल आता है, कौन से क्रिप्टो में लगाओ, तो हम बोलेंगे ये वेबसाइट खोल के देख लो. फिन के तरफ से तुम लोगों को जो भी हेल्प चाहिए, आई एम मोर देन विलिंग टू डू, राइट. टेक्निकल एनालिसिस होता कैसे, आई कैन हेल्प यू, यू गाइस विद दैट. दैट्स वन. बॉलिंजर बैंड्स कैसे बनते हैं, ये सब कैसे होता है, राइट, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट, राइट. विजुअलाइजेशन में ऑब्वियसली, राइट, देयर आर 3 पीपल व्हिच कैन वर्क ऑन इट. वेबसाइट बनाने में, राइट, अगेन बहुत ज़्यादा चैलेंज है नहीं, विक्स पे ही बना देंगे, राइट, जहाँ पे हम लिंक्स डाल दें, एंड वी कैन गो अबाउट इट, राइट. कैसे करना है, इंजीनियरिंग में कोई और हेल्प चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, राइट. तो अगर ये चाहिए है तो फिर मतलब वो कर सकते हो, मतलब बताओ कब करना है. कैसा मतलब वीकली या फिर डेली वी नीड टू गिव टाइम, कैसा होगा? यार देखो, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा सब लोग स्लैक पे एक ग्रुप बनाओ. ओके. पहले तो तुम लोग अच्छे से डिसाइड कर लो कि कौन कौन इसको करने के लिए क्या क्या करेगा, राइट, ठीक है. देखो सबसे पहले 2-4 चीजें कर लो, राइट. पहले ये कर लो कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, राइट, क्या बना रहे हैं, राइट, और इस पे कौन कितना टाइम कमिट करेगा. तो स्लैक पे एक चैनल बना लो, राइट, एंड उस पे है ना थोड़ी बहुत रिसर्च करो. जैसे मैंने sentiment.net निकाली है, ऐसे 3-4 वेबसाइटें निकाल के डाल दो, सबको ही अपनी अपनी, राइट, और इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, इनकी टीम्स को देखो कि इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है, राइट, थोड़ा सा वहाँ समझो, राइट, एंड देन फाइनलाइज अपॉन द आइडिया, राइट. मेरे को भी उसमें ऐड कर दो स्लैक ग्रुप पे, राइट, सो वी कैन ऑल डिस्कस. स्लैक पता है सबको क्या होता है? स्लैक भाई ऐसा होता है व्हाट्सएप पर थोड़ा अच्छा वाला व्हाट्सएप, राइट. डिस्कॉर्ड बोल सकते हैं. हाँ मतलब ऑफिस में यूज होने वाला व्हाट्सएप होता है ये. तो एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, राइट, एक स्मॉल कंपनी बना लो, कंपनी का नाम रख लो जो रखना है, उस पर भी डिस्कस, सलाह मशवरा सब लोग कर लो, वोट कर लो 4 नाम के साथ, राइट, और एक बना दो उस पे वो. मतलब एक्चुअली में यार यही होता है भाई, ऐसे ही बनता है. मतलब ये मैं ऋषि, आई थिंक दिस विल मेक मोर सेंस, मच 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 मोर सेंस. मतलब मेरे को तो ये लग रहा है ये बनाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रोडक्ट में और कुछ भी करने से अच्छा ये करो, मतलब तुम लोग का लाइव प्रोजेक्ट भी हो जाएगा.
और इसको फिर बैठ के एक या 2 दिन निकालते हैं किसी वीकेंड पे, जिस दिन जो है सब कोई स्लैक पे कनेक्टेड रहेंगे और जो है 12-15 घंटे में इसको बना के खत्म करो। ओके हाँ मतलब एक स्ट्रेच पे बैठना होगा फिर आपको, बढ़िया। मतलब या वीकेंड पे वो 2 दिन जो है 8-8 घंटे बैठ के, राइट, वी कैन ऑल डू इट। श्योर। वर्क्स फॉर मी। तो इसमें देखोगे ना, इसमें समझ आएगा कोऑर्डिनेशन करना कितना मुश्किल होता है, प्रोडक्ट चलाना कितना मुश्किल होता है। इसमें कोई भी पीएम नहीं होगा, राइट, इसमें ऑल विल बी ओनर, ऑल विल बी इक्वली वोटिंग आउट। किसी को भी जो है मतलब सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे हम असाइनमेंट में कुछ ना कुछ करते हैं, राइट, इसमें भी सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लाइक इवन आई वुड बी समवन हु वुड एक्चुअली डू समथिंग। तो इसमें ज्ञानबाजी कुछ नहीं होगी, नो ज्ञान, नो पीपीटी, नथिंग। बनाएंगे हम प्रोडक्ट। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट हो ही गया। But नहीं चला तो the ब्रैगिंग but राइट्स the तो आ जाए। this thing the a technical part of it कि how to analyze that particular trade वो सब कैसे संभालेंगे? अरे कुछ नहीं एनालाइज करना है यार, जो आता है वो करेंगे। पावर बीआई आता है तुमसे? हाँ सेंटीमेंट एनालाइजर का मैं एक टूल बता दूंगा, बढ़िया, रैपिड माइनर करके होता है, ठीक है। वो तुम्हारा डेटा जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाल देगा, बस, ठीक है। इसमें एक सिंपल सीक्वल क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट दिस डेटा फ्रॉम दिस टेबल, राइट। वो वाली टेबल को से उठाना है डेटा, उसके ऊपर हमको जो है एक सिंपल डैशबोर्ड बनाना है जिस पे हम करेंसी सेलेक्ट कर पाए, उस करेंसी का हमको सारा डेटा आ जाए। वो ट्विटर से सारा डेटा खींच के ले आएगा, बस। okay. इस पे तुमको न्यूरल नेटवर्क, ये नेटवर्क, वो नेटवर्क लगाना है, सब कुछ लगा लेना। मतलब मोर देन हैप्पी टू डू इट गाइस, मतलब इफ यू गाइस आर इन फॉर इट, राइट। डेटा ये बढ़िया एनालाइज करेगा और डेटा जो है ये बेसिकली सबमिट कर देगा, राइट। सेंटिमेंट्स का डेटा हम फेच करेंगे, तो ये सबको पढ़ना पड़ेगा कि सेंटिमेंट से डेटा कौन आएगा, कौन लाएगा, राइट। तो सेंटिमेंट वाला पार्ट मैं कर दूंगा कि तुम्हारे ट्विटर के सेंटिमेंट्स को निकाल के तुम लोग को देना है, वो मैं एक डेटा एक टेबल पे स्टोर करा दूंगा। पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या स्टोर करना है, लाइक किस हैशटैग के अगेंस्ट का डेटा मेरे को निकालना है, वो मेरे को बता दो, एक लिस्ट बना लो डिस्कस करके। ट्विटर काम कैसे करता है ये भी समझ जाओगे। थोड़ा सा ऐसा सोचना स्टार्ट करो ना, कंपनी ढूंढ रहे हैं हम, मतलब या इतना ब्राइटी को क्यों सोच रहे हो, मतलब थोड़ा सा आगे सोचो उसके। मतलब बताओ यार, मैं स्लैक पे बना ही दे रहा हूँ एक ग्रुप, पहले सोच लो। एक काम करो, एक बार सोच लो, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना सब लोग, राइट, कि आई एम इन और आई एम नॉट इन, वट एवर योर थॉट इज, राइट। अगर ये है, राइट, so we should go ahead and building, because anyways, right, I am finding it very interesting, right, matlab I would love to do it with anybody if somebody is interested। और अगर मेरे पास मतलब लिटरली अगर बैंडविड्थ अभी खाली होती ना, मतलब मैं तो चालू ही कर दिया होता। तो मैं खुद ही इशू फेस कर रहा हूँ, मेरे को रोज फोन कर रहे हैं 4 लोग कि कौन से बिटकॉइन में पैसा लगाएं, मतलब कौन से क्रिप्टो में पैसा लगाएं, और मेरे पास कुछ नहीं होता क्योंकि वो ट्विटर में इतना पढ़ता नहीं हूँ, ट्विटर के सेंटीमेंट का कोई डेटा डायरेक्टली देता नहीं, मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। तो थिंक यू गाइस, राइट, थिंक मच बियॉन्ड इट, राइट। सबको ऐड करते हैं, वी शुड गो अबाउट एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट। स्टार्ट करो, फिर मैं ऐड करते आऊंगा पॉइंट। ऋषि इतना मत सोचो, इतना सोचोगे तो कुछ बनेगा नहीं, तुम तो ये No, सब बनाना है। I'm ready for this. हाँ I'm ready.